गुड आफ्टरनून एवरीवन. एम आई ऑडिबल ऑनलाइन वालों? पानी हटा लेना यहाँ से, इसको हटा लेना यहाँ से अभी, इसको भी. हटा ही दो इसको. हटाओ इसको यहाँ से, बस वहाँ रख दो. गिर ना जाए, गिर ना जाए, एज पे रखा हुआ है. क्या हुआ भाई, लोग कहाँ गए आज? हैं? करवा चौथ मना रहे हैं? अच्छा. धीरे धीरे आएंगे. Shall we start? ठीक है. सो कल हमने पढ़ा हाउ डू वी चेंज द एटीट्यूड ऑफ समवन, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स दैट वी कैन अप्लाई इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग ऑफ द एटीट्यूड. एंड देन वी ऑल्सो स्टार्टेड द डिस्कशन अराउंड वेस्टर्न थिंकर्स, है ना, दैट व्हाट आर द ब्रॉडली 3 मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स, how we can classify that what should be the right action. So there are 3 broad school of thoughts जो हमने पढ़े, that 2 school of thoughts focuses on actions and 1 school of thoughts focuses on actor. It focuses on actor. Then we also learned about deontological perspective. What is meant by deontological perspective? The keywords in deontological perspective is that the basic assumption is that every individual, every human being is a rational being. No, he or she can apply the logic, can apply the reasoning. Yes, and since everyone is rational, everyone can decide for themselves, and that is why we must accord each other the due dignity. We must treat each and every human being as an end in themselves and not as a means, because when we treat as a means we deny them the basic dignity that they deserve, because somehow there is this अगर हम outrightly exploit कर रहे हैं तो वो तो अपने आप में गलत है, और अगर हम benevolent exploitation भी कर रहे हैं that is also wrong. Like lying to someone actually robs them of their own rights to determine things for themselves, है ना. मैं आपको झूठ बोलूं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, आपका आंसर राइटिंग सपोज अच्छा नहीं आ रहा है, आप खूब प्रयास के बाद भी आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, मैं आपको झूठ बोलता रहूं कि यार आप तो रैंक आएगी. सो आई एम बेसिकली डिनाइंग यू द डिग्निटी, और परहैप्स आई एम denying the dignity to determine the future for yourself. I am denying the dignity that you can perhaps take this challenge heads on and perhaps decide your own future course of action. ठीक है, so that is why it is wrong. I must treat you, every one of us should treat each other with the due dignity, ना, right, like humans being are end in themselves. इसका सोशल लाइफ में जो एप्लीकेशन है वो हमने पढ़ा. कैसे पढ़ा हमने सोशल लाइफ में एप्लीकेशन? मैनुअल स्कैवेंजिंग के टर्म्स में पढ़ा, दलित एट्रोसिटी के टर्म्स में पढ़ा, बॉन्डेड लेबर के टर्म्स में पढ़ा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिस्पेक्ट में पढ़ा, ऑर्गन का जो वो होता है, क्या होता है, इलीगल ऑर्गन सेल जो होता है ना, उसको निकाल देते हैं, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट दिस थ्योरी ओनली. या इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज that is a 21st century slavery, informal employment. ठीक है, so informal employment is also under this particular category only, that is that workers are treated as a means to achieve higher profits, because they are denied the basic workers right, like due payments, payment on time, है ना, payment जो है वो पूरा मिले,
there should not be any wage gap between male and female, and there should not be exploitation etc. So the point I'm making is informal employment में भी आप इस mean end theory का यूज कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बॉन्डेड लेबर हो रहा है, चाइल्ड लेबर हो रहा है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग ओनली. ठीक है, तो मोर और लेस वी हैव अंडरस्टूड द एस्पेक्ट कि कहाँ इसका एप्लीकेशन होगा. अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज सिंस ईच ऑफ अस इज ए रैशनल बीइंग, दैट मीन्स दैट वी कैन डिसाइड थिंग्स फॉर अवर सेल्फ. दैट ऑल्सो मीन्स दैट इसका एक अजम्पशन और था कांत साहब का कि द ओनली थिंग गुड इज गुड विल, द ओनली थिंग गुड इज फ्री विल ऑफ द इंडिविजुअल, कि वो उसको कैसे डिसाइड करता है. रेस्ट ऑल थिंग्स आर सेकेंडरी. सो आदमी के पास अगर फ्री विल है और क्या है, रैशनैलिटी है, तो उसके हिसाब से जो प्रिंसिपल निकल के आता है वो निकल के आता है कि we should act according to that maximum or that rule that can become a universal law. Basically we should act according to categorical imperative and not situational imperative. हमारा जो decision making है ये categorical imperative होना चाहिए, universal होना चाहिए, should not be dependent on anything. Because अगर हम dependency create करते हैं, अगर situation create करते हैं, conditionalities create करते हैं, then हमने देखा जैसे लाइन के केस में कि ये रैशनल नहीं रह जाता है. yes or no? And another important point of Kantian philosophy is that we must do the right thing because it is the right thing. Basically not because of the consequences per se, but because of the conscience, because of the feeling of duty, कि हमको ड्यूटी करनी है. आ रही बात समझ में? So that is the perspective of Kant, but as we all know that thinkers के अपने criticism होते हैं, thinkers को हम face value पे नहीं लेते हैं. तो कितने लोग इसकी जो मेरिट और डीमेरिट है उसको लिंक कर पाए एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूट एथिक्स के जो मेरिट डीमेरिट थे. दैट इज सिमिलर थिंग ओनली. कांत साहब इज सेइंग सिमिलर थिंग ओनली कि देयर शुड बी यूनिवर्सल लॉ, दैट शुड बी फॉलोड बाय एनीवन, देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशनैलिटी. तो जो एब्सोल्यूट एथिक्स पढ़ा है ना हमने, एब्सोल्यूट स्कूल ऑफ थॉट. भाई आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझको? कुछ मैं डिफरेंट देख रहा हूं क्या आज? तो ऐसे देख रहे हो, पहली बार सुना है सर, कैसी बातें कर रहे हो बहकी. मैंने पढ़ाया है आपको डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, जहां तक मुझे याद है पढ़ाया है ना. तो कौन से दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में? एब्सोल्यूटिज्म एंड रिलेटिविज्म. तो जो एब्सोल्यूटिज्म था उसके मेरिट डिमेरिट कराए थे ना मैंने. तो ये भी तो सॉर्ट ऑफ एब्सोल्यूटिज्म ही है कि जो एथिकल प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली होंगे, वो सिचुएशनल नहीं होंगे. तो क्या सिमिलर मेरिट डिमेरिट नहीं लगेंगे? यहां पे लगेंगे. सो क्या मेरिट होगी इस स्कूल ऑफ थॉट की? ऑर्गन ट्रेडिंग. यस, वेरी गुड रेड्डी जी. मेरिट easy to follow. Yes, firstly it is easy to follow. Second merit is that Kant is right when he says that human beings are end in themselves. Kant is right because there has to be some universal aspect of the human beings. ऐसा तो नहीं हो सकता कि यूएसए का सिटीजन का ज्यादा राइट्स है और इंडिया के सिटीजन का, पाकिस्तान सिटीजन का कम राइट. ऐसा तो नहीं हो सकता. देयर हैज टू बी सम कॉमनैलिटी. तो कांत इज राइट व्हेन ही इज सेइंग दैट. So there are some universal standard by virtue of human existence. आ रही बात समझ में? Then easy to follow. It is fair also. Yes, it is fair also because it is equally applicable to everyone. किसी के पास कोई conditionality नहीं है. It avoids slippery slope and ultimately it is based on rationality and that is why there should not be any subjectivity. ठीक है? That is the perspective of Kant. What will be the biggest criticism of this? Criticism. Merits तो यही हो गए. Criticism. What will be the criticism? वकील साहब नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है? तबीयत वरना ठीक है उनकी? वकील साहब अगर आप इसको ऑनलाइन देखते हो बाद में वीडियो को, तो प्लीज क्लास में आइए. आई एम मिसिंग यू. आई थिंक सभी लोग मिस कर रहे हैं आपको. प्लीज कम टू द क्लास. एक पर्सन और बैठते थे यहाँ पे, कहाँ से, डीयू से या कहीं से पढ़े हुए थे वो भी आप क्लास में नहीं आ रहे हैं. वीडियो बहुत बफर कर रहा है. सोनू जी देखिए इसको, वीडियो बफर कर रहा है. शैल आई स्टॉप और एम आई ऑडिबल प्रॉपरली?
भाई वीडियो बफर कर रहा है, बहुत ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं, देखो। Shall I stop for a while then? Yes sir, please. कोई मैरिड पर्सन बैठा है क्लास में? एनीवन मैरिड? नो? चल गया, सही हो गया, ठीक है। क्या उन्हीं की साइड से प्रॉब्लम है? अच्छा, तो भैया आपके यहां से प्रॉब्लम है, आपके यहां से प्रॉब्लम है, प्लीज देखिए, क्योंकि यहां से ठीक चल रहा है। ठीक है, सो द फंडामेंटल डिमेरिट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्गुमेंट इज दैट this school of thought forces us to think ki as if there is no bearing on the consequences. ठीक है, कि consequences शायद मैटर ही नहीं करते। Is it true? Is it true? सपोज मैं आपके मुंह पे बोल दूं कि तुम्हारा सिलेक्शन जिंदगी में नहीं होगा, और आपको कल हार्ट अटैक आके और आप निकल जाओ यहां से, तो am I not responsible? Can I just hide behind the fact that I was merely uttering the truth? बोलिए बोलिए। ब्यूरोक्रेसी का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रैफिक कांस्टेबल का, तो उस कांस्टेबल वाले एग्जांपल में भी वो कांस्टेबल कह सकता है ना कि आई वाज जस्ट फॉलोइंग माय रूल्स। अगर वो मर गई तो मर गई, ट्रैफिक जाम में फंस के, तो मेरी गलती थोड़े ना है। यस, आ रही बात समझ में? सो डज इट एब्जॉल्व्स द कांस्टेबल ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस? सपोज आप एक साल पूरी मेहनत करें, जान लगा के, यू फोकसेस ऑन राइट मीन्स, एवरीथिंग, डिसिप्लिन, एवरीथिंग, खुदा न खास्ता आपका सिलेक्शन नहीं हो फाइनली, इवन दो आप खुद को दिलासा देंगे कि भाई मेहनत करी, पूरी करी, बट डज इट एब्जॉल्व्स यू ऑफ योर कॉन्सिक्वेंसेस? बिकॉज अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस मैटर्स. Ultimately consequences matters. So perhaps one of the biggest criticism is that people are not just judged based on principles alone. They are also answerable for their consequences as well. आ रही बात समझ में? So we are answerable for our consequences as well, not just the principles. India was able to get the non-cooperation, the independence after NCM. ठीक है, सपोज ऐसा होता कि इंडिपेंडेंस नहीं मिलती, सपोज ऐसा होता, तो क्या गांधी जी को गांधी जी के उस डिसीजन को, चौरी चौरा वाले के डिसीजन को उसी लाइट में देखा जाता जिस लाइट में आज देखा जा रहा है? थिंक ऑफ इट. आ रही बात समझ में? So the problem is that we are responsible for the consequences. We cannot hide behind the principles. We cannot hide behind the means only. We should be conscious of the fact that we are also responsible for the consequences, and we should take responsibility for them. आ रही बात समझ में? That is one of the biggest problem, that if you are too focused on the means, you lose sight of the end and the grand vision. In case of bureaucracy, that is, rules becomes the end in themselves, and when rules become the end in themselves, it create problems. Yes, आ रही बात समझ में? It create problems. And then this is from the last discussion only, that what are those universal standards? जो कांत बोलते हैं कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, what are those universal standard? कोई उस पे सहमति बनी है कभी? इसी पे तो डिबेट है पूरा कि वो कौन से प्रिंसिपल हैं. शायद कुरान वाले कहेंगे कि जो कुरान में लिख दिया वो यूनिवर्सल है, वेद वाले कहेंगे कि वेदों में लिख दिया वो यूनिवर्सल है. मैं तो खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं. आ रही बात समझ में? Then it does resist growth and development. We have discussed this. It ignores diversity. It ignores the differences in conception of justice that different people might have. Abortion, capital punishment,
gamey, treatment of animals. Now these are all very subjective issues. So that is one of the biggest criticism of deontology is that consequences do matters, और ये somehow does not forces individuals to not look for the consequences, और उनकी responsibility accept करने की ओर उनको push नहीं करता. So that is one of the biggest criticism. आ रही बात समझ में? Yes or no? Yes. And बाकी आपने पढ़ाई है, एब्सोल्यूट एथिक्स के डिमेरिट्स हैं ये. यस, आगे बढ़ा जाए. ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू द टेलियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स. नाउ टेलियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या था? टेलियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या था? that we decides the morality of an action based on its consequences. हम consequence अब देखेंगे और शायद प्रिंसिपल नहीं देखेंगे, अब खाली कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे. बिकॉज ये स्कूल ऑफ थॉट यही कहता है कि भैया कॉन्सिक्वेंसेस मैटर करते हैं. अल्टीमेटली अगर आपको कोई बोले ये सिलेक्शन मैटर करेगा, चाहे जैसे सिलेक्शन कराओ. अगर मैं आपके टर्म्स में बात करूं तो जैसे का मतलब क्या है? क्या किसी के यहाँ चोरी डकैती कर लें क्या? किसी के नोट्स चोरी कर लें क्या? है ना? जैसे क्या मतलब क्या? एग्जाम में बैठ के कॉपी वॉपी करना शुरू कर दें क्या? खर्रे ले जाएं क्या? वो लिख के ले जाएं क्या? तो जैसे का मतलब क्या? ठीक है. सो व्हेन एंड्स डिफाइंड मीन्स कि अल्टीमेटली एंड्स ही मैटर करते हैं, गोल्स वो कॉन्सिक्वेंसेस ही मैटर करते हैं, देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम. आ रही मेरी बात समझ में आपको? देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम. अब यहाँ पे दो मेजर स्टैंड ऑफ थॉट्स आते हैं. एक स्टैंड ऑफ थॉट्स बोलता है कि हमको ना बस एक्ट पे फोकस करना चाहिए, इंडिविजुअल एक्ट पर. अभी जब मैं जो कर रहा हूं ये मैं बस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे मुझे कुछ फायदा हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस इसके अच्छे हैं. सो दैट इज एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म. यूटिलिटी का मतलब यह होता है कि इसका आपके लिए यूटिलिटी क्या है. आपको समझ में आ रहा है? मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कुछ दिक्कत हो रही है क्या? समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? और मैं ज्यादा लो तो नहीं बोल रहा हूं? सही है, ठीक है. सो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म. नाउ एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है? जैसे आप बोलते हैं ना कि सर इसकी मेरे लिए यूटिलिटी क्या है. अगर मैं कुछ आपको दूं, कोई बोलूं कि यार कोर्स ज्वाइन कर लो, तो आप बोलेंगे सर मेरे लिए इसकी यूटिलिटी क्या है. तो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि मेरे को इससे फायदा क्या है, यही कहना चाह रहे हैं. तो यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो इसी बात पे फोकस करता है, वो स्कूल ऑफ थॉट, कि किसी भी एक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो यूटिलिटी बढ़ाने चाहिए. बेसिकली इसके कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव होने चाहिए, ओवरऑल पॉजिटिव होने चाहिए, ओवरऑल यूटिलिटी होनी चाहिए. यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम काफी क्वांटिटेटिव टर्म्स में मोस्टली सोचते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि ओवरऑल हमको फायदा मिले. क्योंकि किसी भी चीज से आपको पेन भी होगा, प्लेजर भी होगा. अब आप कोई कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपका कुछ उसका फीस भी पे करोगे. यस और नो? अगर सपोज आपने कोर्स के लिए फीस पे करी एक्स और आपका लगता है कि आपको जो से फायदा हुआ वो एक्स के बराबर नहीं हुआ, ठीक है, जो आपने एक्स पे किया उस कोर्स के लिए, तो क्या आपको लगेगा कि कोर्स की आपके लिए कोई यूटिलिटी थी? नहीं थी ना. और अगर आपको लगता है कि यार मैंने तो एक्स ही पे किया बट इससे मुझे फायदा 4x हुआ, इस कोर्स से मुझे वो सब्जेक्ट में फायदा हुआ, फलान चीजों में फायदा हुआ, एग्जाम का तरीका समझ में आया, फायदा बहुत हुआ इस कोर्स से, तो शायद आप मानेंगे कि इसकी मेरे लिए यूटिलिटी थी. तो जब मैं ये वर्ड बोल रहा हूं कि इसकी मेरे लिए यूटिलिटी थी, तो मेरा दिमाग कैलकुलेशन कर रहा है कि ओवरऑल मुझे फायदा हुआ कि नहीं हुआ, इवन दो देयर वाज सम कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस डिसीजन, इवन दो देयर माइट बी सम पेन ऑल्सो. आप में से कितने लोगों ने डाइटिंग कभी शुरू करी होगी, है ना? कभी कभी प्रैक्टिस करी होगी कि हम डाइटिंग करेंगे. तो डाइटिंग जब करते हैं तो बॉडी में कई बार कुछ नेगेटिव चेंजेस भी आ जाते हैं अगर हम सही से प्लान नहीं करें तो. लेकिन कई लोगों के एक्सपीरियंस अच्छे भी होते हैं, कई लोगों के एक्सपीरियंस खराब भी होते हैं. ठीक है, तो ओवरऑल जो डाइटिंग का एक्सपीरियंस बोलोगे तो यार हाँ डाइटिंग मैंने किया और इट वॉज यूजफुल फॉर मी, इसकी मेरे लिए यूटिलिटी थी. अरे मेरी बात समझ में? या कुछ लोग कोई नशा वशा वगैरह करते हैं, दारू वगैरह पीते हैं पहली बार, तो एल्कोहल का टेस्ट बोलते हैं काफी कड़वा होता है, इट इज नॉट ए गुड टेस्ट. ठीक है, बट पीपुल डू नॉट टेक एल्कोहल फॉर द टेस्ट, दे टेक एल्कोहल फॉर द एक्सपीरियंस. तो कई लोग जिनके लिए शायद
टेस्ट ही बहुत कुछ मैटर करता है, उनके लिए उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ओवरऑल वो अल्कोहल को प्रेफर नहीं करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पेन वाला एस्पेक्ट भी है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, बट जो लोग समझते हैं कि भैया अफ्री माहौल तो 3-4 घंटे बाद आने वाला है, लेट्स हैव लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है, सो परहैप्स वो लोग कहेंगे हाँ यूटिलिटी वाज गुड, है ना। लिकर की बात करें, डिफरेंट टाइप्स की लिकर्स आती हैं, सिर में दर्द कोई करा देती है, कोई अच्छा आपको फील कराती है, ओवरऑल आपको उसकी यूटिलिटी समझते हैं। इस सारे डिस्कशन से मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी हम यूटिलिटी की बात करते हैं, हम ओवरऑल बात करते हैं। हम ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो ना केवल हम पॉजिटिव देखते हैं, हम नेगेटिव्स भी देखते हैं, और हम नेट आउटपुट की बात करते हैं कि उसका नेट आउटपुट हमारे लिए क्या निकलना चाहिए, पॉजिटिव निकलना चाहिए। दैट इज ओनली व्हेन वी से कि दिस हैज यूटिलिटी, ये करना चाहिए आपको, ठीक है। तो अब केस में 2 सिनेरियो बन जाते हैं। एक तो बन जाता है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, जिसके हिसाब से हमको हर बार इंडिविजुअल एक्ट्स को ही जज करना चाहिए कि मुझे चॉकलेट खानी है तो मैं चॉकलेट खा के मजा आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना ही बस मैं जज करूं, या मैं से कितना मोटा हो जाऊंगा। द ओनली थिंग इज मैं बहुत शॉर्ट टर्म सोच रहा हूं और मैं इंडिविजुअल एक्ट के बेसिस पर ही सोच रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। अभी थोड़ा सा ग्रो होगा ये टॉपिक, क्योंकि इसमें काफी अच्छी इंट्रोड्यूस होने वाली हैं, तो थोड़ा सा डाउट वगैरह आ रहा हो तो थोड़ा शांत रहिएगा। जो पढ़ा रहा हूं वही बस समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना थोड़ी देर में, ठीक है। थोड़ी देर में पूरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, मैं बिल्ड कर रहा हूं अभी कॉन्सेप्ट को। सो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म इज अबाउट द सिंगल एक्शन, कि कोई भी एक्शन मैं कैसे करूं। जैसे इट इज मोस्टली अबाउट द थिंग जो हम काफी ज्यादा प्लेजर और पेन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, कि जिसको हम तुरंत कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यार इसे तो फायदा हो रहा है, अरे मेरी बात समझ में, और आप और जजमेंट तुरंत ले लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। अरे बात समझ में, दैट इज कॉल्ड एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, जिसमें हम इंडिविजुअल एक्ट को ही जज करते हैं। सेकेंड थिंग इज रूल यूटिलिटेरियनिज्म। इन रूल यूटिलिटेरियनिज्म आप इंडिविजुअल एक्ट्स नहीं देखते, आप रूल्स देखते हैं, जिस रूल्स को आप फॉलो करेंगे, और आप ये मानते हैं कि अगर मैं ये रूल फॉलो करता हूं, नॉट इंडिविजुअल एक्ट, देन मोस्टली आई विल बी हैविंग गुड कॉन्सिक्वेंसेज। इन दिस केस ऑल्सो आपको लग रहा होगा मैं रूल की बात करता हूं, लॉ की बात कर रहा हूं, तो शायद प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, कांत के हिसाब में सोच रहा हूं। मैं कांत के हिसाब से नहीं सोच रहा हूं। इवन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन रूल्स एंड प्रिंसिपल, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ओनली, कि मैं ओवरऑल कॉन्सिक्वेंस में डिसाइड करूंगा कि ये सही होगा कि नहीं होगा। अब मैं इन दोनों के डिफरेंस को क्लियर करने के लिए आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। सपोज मुझे कोई जमीन खरीदनी है गवर्नमेंट की ओर से, और मुझे वहां पे डैम बनाना है या माइनिंग का कुछ खोलना है, लेटर से मुझे डैम ही बनाना है, ठीक है ना। एक अप्रोच ये हो सकती है कि जब जब मैं कंट्री में डैम बनाऊं, मैं हर बार उसको इवेल्युएट करूं, यार डैम से फायदा होगा, नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, हर जगह की टोपोग्राफी अलग है, हर जगह के जो आसपास के लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, है ना। तो मैं नदी का जो फ्लो है वो हर जगह अलग अलग हो सकता है, कहीं पेरेनियल फ्लो है, कहीं पेरेनियल फ्लो नहीं हो सकता है। सो मैं मैं हर इंडिविजुअल केस को केस टू केस बेसिस पे डील करूंगा, और उस केस टू केस बेसिस पे जब मैं डील करूंगा तो परहैप्स आई एम फॉलोइंग एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, क्योंकि मैं इंडिविजुअल केसेस पे हर बार जज कर रहा हूं अपने आप को कि यार ऐसा फायदा होगा कि नहीं होगा, मैं देख लेता हूं। लेकिन वही मैं अगर ये कह दूं कि यार ऐसी जो भी चीजें हैं जहां पे आप लैंड एक्वायर करने जा रहे हो, कोई नया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हो, और बेसिकली आपको देखना है कि उससे ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेस में फायदा है कि नहीं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल कॉस्ट भी एसोसिएटेड है। तो परहैप्स अगर मैं ये रूल बनाता हूं अपने लिए कि अगर मैं हर कोई एक नया जब भी कोई मेरा प्रोजेक्ट होगा, सो आई विल बी फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर रूल एंड प्रोसेसेस। For in this case, this can be EIA and SIA. कि every time I will be doing environment impact assessment and social impact assessment perhaps. Or after this impact assessment, I will come to know the overall cost benefit analysis of this project. Perhaps मैं उसमें कुछ चेक मार्क्स भी कर लूंगा कि मैं ये चेक करूंगा, ये चेक करूंगा, ये चेक करूंगा, लोगों को पार्टिसिपेट कराऊंगा, एक्सेट्रा। बट अल्टीमेटली what I am going to follow is a template, is a rule.
सो दैट इज वाई नाउ अब कोई भी मुझे डैम और जो भी खोलना है, मैं उसको हर बार नए सिरे से डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली अपने पुराने रूल्स पे जा रहा हूं, मैं उस रूल के हिसाब से फॉलो करूंगा, वो रूल के हिसाब से देखूंगा क्या ये गो नो गो जोन में है, अगर ये गो नो गो जोन में है, अगर नो गो जोन में है तो वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा मेरे लिए। तो बेसिकली मैंने पहले से कुछ रूल्स बना रखे हैं, उन्हीं रूल्स के हिसाब से मैं डिसीजन मेकिंग करूंगा। दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जब मैं रूल्स बना रहा हूं तो मैं ओवरऑल रूल्स बना रहा हूं, और रूल्स बनाने में मैं ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव देख रहा हूं चीजों के। लेकिन जब मैं एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म की बात कर रहा हूं तो मैं इंडिविजुअल एक्ट की बात कर रहा हूं। और इसको थोड़ा बेहतर समझाने के लिए अब मैं इंडिविजुअल लेवल पर एग्जांपल लेना चाह रहा हूं। आप में से कितने लोग लेटस से कोई बुरी आदत बताओ जो आप करते होंगे। लेटस से आपकी कोई बुरी आदत है कि आप मूवीज बहुत देखते हैं। सपोज ऐसा है कि आप मूवीज बहुत देखते हैं, नेटफ्लिक्स बहुत देखते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज मोस्ट लाइकली इज कि आप हर बार केस टू केस बेसिस पे डिसीजन ले रहे होंगे। आज मेरा मन कर रहा है मूवी देखनी चाहिए क्या, तो आज मैं डिसाइड कर रहा हूं कि कल का मेरा काम कितना है, कितना मैं कर लूंगा, अरे मैं बाद में कर लूंगा, मूवी देख लेता हूं। हो सकता है मूवी देख के मुझे गिल्ट हो, मूवी देखने में मजा ना आए और उसके बाद काम बहुत बढ़ जाए मेरा। फिर थोड़े दिन टाइम पास होगा, फिर आपको कुछ मूवी देखने का अंदर से अच्छा जागृत होगी, तो फिर आप डिसीजन मेकिंग करोगे। हो सकता है कि आप दूसरे सिचुएशन में बैठे हो, आप घर पे बैठे हो, आपकी पढ़ाई लिखाई प्रीलिम्स के पेपर देके जस्ट आए हो, बट आपने कोई रूल नहीं बनाया अपने लिए। एवरी टाइम यू आर इवेल्युएटिंग कि मुझे मूवी देखनी है कि नहीं देखनी है। ऑन द अदर हैंड, डू यू नो दैट मैनी पीपल क्रिएट ए रूल फॉर देमसेल्फ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डाइटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो मैं वीक में एक दिन का फास्ट जरूर रखूंगा, बी ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी आपका दिन हो। नाउ दिस इज ए रूल। नाउ आई एम नॉट डिसाइडिंग ऑन एवरीडे बेसिस कि ट्यूसडे को फास्ट रखना है कि नहीं रखना। ट्यूसडे को तो शादी है ना, शादी का खाना मिस हो जाएगा, तो ट्यूसडे को फास्ट को वेडनेसडे कर लेता हूं। अल्टीमेटली फास्ट ही तो रखना है। कैन यू सी द डिफरेंस? एक केस में मैं हर केस को केस टू केस बेसिस पे डील कर रहा हूं, दैट इज एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म कि मुझे कल फास्ट करूंगी, परसों फास्ट करूं, कल शादी का खाना हो जाएगा तो मैं परसों कर लूंगा, पच भी जाएगा खाना। नहीं, दैट इज एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। और मैंने रूल अपने लिए बना रखा है कि मैं हर ट्यूसडे फास्ट रखूंगा, चाहे शादी आ जाए चाहे कुछ आ जाए। दैट इज रूल यूटिलिटेरियनिज्म। दोनों ही केसेस में मैं डिसीजन कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पे ही ले रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं हर बार उस एक्ट को इवैल्यूएट कर रहा हूं, यहां पे मैं उस रूल को इवैल्यूएट कर रहा हूं कि हर वीक में ट्यूसडे को फास्ट करने से मुझे क्या फायदा होगा। परहैप्स आप ये एंश्योर कर पाएंगे कि आप फास्ट कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है आपको? तो ये थोड़ा सा दो मेजर डिफरेंसेस हैं जो अभी जो कुछ गिरा है क्या? अच्छा, जो दिख रहे हैं। थोड़ा सा इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि यार इस चीज की मुझे यूटिलिटी है कि नहीं है, हाउ डू आई मेजर दिस यूटिलिटी? कोई भी एक्शन हो सकता है। सो अगेन हेयर वी सी टू ब्रॉड स्ट्रैंड्स, जिसमें एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहते हैं, जेरेमी बेंथम ये कहते हैं कि अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म। You can actually quantify the kind of pleasure and pain you are getting, और आप उसको ओवरऑल जजमेंट ले सकते हैं कि उससे ओवरऑल फायदा हुआ कि नहीं हुआ। एक दारू है, कड़वा टेस्ट है, बट माहौल बहुत देर तक अच्छा रहता है, तो ओवरऑल जजमेंट इज गुड फॉर यू एंड यू विल ड्रिंक दैट थिंग। प्लेजर एंड पेन, तो इनके लिए ये क्या बोलते हैं, दैट जेरेमी बेंथम स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, ये जेरेमी बेंथम क्या कहते हैं कि नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सॉवरेन मास्टर, पेन एंड प्लेजर, एंड एक्शन इज मॉरल दैट इफ इट मैक्सिमाइजेज द प्लेजर एंड मिनिमाइजेज द पेन। तो बेसिकली इंडिविजुअल उस इंडिविजुअल एक्शन को मॉरल समझेगा जो उसका प्लेजर को मैक्सिमाइज करता है और पेन को मिनिमाइज करता है। बर्गर खाना है, बर्गर खाने में मजा आ रहा है तो आप बर्गर खा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है बर्गर खाना क्योंकि बर्गर खाने से मजा आ रहा है।
जो स्ट्रेस ईटिंग होती है, तो आपका जो पेन है, स्ट्रेस का पेन है, उसको मिनिमाइज कर रहा है और आपके प्लेजर को मैक्सिमाइज कर रहा है। तो बर्गर खा रहे हैं, यू फाइंड इट मॉरल कि इट इज माई बर्थ राइट टू हैव दिस काइंड ऑफ फूड्स इन द मोमेंट्स ऑफ स्ट्रेस। या आप कोई पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर लेते हैं, 2-4 दिन तो करते ही होंगे अच्छी, फिर आपको अंदर से गॉड सेंट एक वो आता है, राइट आता है कि अब तो मैं थोड़ा बर्बादी करूंगा, है ना, एंड यू फील गुड अबाउट इट। जब भी वो करते हैं, समय की बर्बादी, मूवी देखना, इट कैन बी एनीथिंग। सो बेसिकली द पॉइंट इज, इट इज सेइंग दैट वो एक्शन मॉरल है जो आपका प्लेजर को मैक्सिमाइज करता है और पेन को मिनिमाइज करता है, क्योंकि अल्टीमेटली ईच वन ऑफ अस इज गवर्न्ड बाय pleasure and pain only. Each one of us wants to minimize pain and maximize pleasure. आप और ज्यादा आपको समझना है तो आप अपने आप को बच्चा इमेजिन करिए। जब आप बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जब दिमाग उतना डेवलप नहीं होता, उतना सोच नहीं पाते हैं, सो दैट इज व्हाट अ चाइल्ड डज। चाइल्ड हमेशा अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करता है, चाहे उसको खाने के समय हो, रोएगा, मटकेगा, उधम मचाएगा, उसको कुछ चीज चाहिए, अपने प्लेजर को वह खाली देखता है, अपने पेन को मिनिमाइज करता है, अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करता है। दिख रहा है आपको कुछ मैं दिखाना चाह रहा हूं जो? तो बेसिकली जेरेमी बेंथम कहते हैं कि जेरेमी बेंथम कहते हैं कि इट इज अबाउट quantitative utilitarianism. Basically, you can quantify the kind of cost and benefit, in this case it is pleasure and pain, और आप accordingly decision ले सकते हो। In fact, ये बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना, बट समझाने के लिए है। In fact, he gave a kind of calculus also. इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए, जिस क्राइटेरिया पे आप इवेल्युएट कर सकते हो कि आपका प्लेजर और पेन का इंटेंसिटी क्या है, आप मतलब डिफरेंट ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या निकल के आ रहा है। He talked about intensity, for example, कि पेन की इंटेंसिटी ज्यादा है कि प्लेजर की इंटेंसिटी ज्यादा है। जब दारू पी रहे हो तो जो कड़वापन लग रहा है वो ज्यादा इंटेंस लग रहा है कि जब आप हाई हो जाते हो वो जो फील है वो ज्यादा इंटेंस है। ऐसा हो सकता है कि पेन ही ऐसा हो कि आपकी जीभ जला दे, पेन ऐसा हो कि आपकी जीभ जला दे, सपोज ऐसा है, तो उसकी इंटेंसिटी पेन की बहुत ज्यादा हो गई। तो इंटेंसिटी इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट। दिख रहा है आपको? बिल्कुल याद नहीं करना, समझाने के लिए मैं समझा रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली ही टॉक्ड अबाउट ड्यूरेशन, पेन कितनी देर रहता है, प्लेजर कितनी देर रहता है। पेन तो रहता है कुछ सेकंड के लिए जब वो जीभ पे रहती है, उसके बाद तो चखना पिक्चर में आ जाता है, उससे मजा आता है, यस। उसके बाद इट इज अबाउट प्लेजर, जो 2-3 घंटे आपका, 4 घंटे, पता नहीं कितने घंटे चलता होगा, ठीक है। वो जो घंटे आपका प्लेजर है, तो बेसिकली टाइम ड्यूरेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसपे आप डिसाइड करते हैं। सर्टेनिटी, कि कोई एक्शन करने से वो प्लेजर और पेन कितना सर्टेन है आना, आप ट्राई कर लो और आपको वो चढ़े ही नहीं, पैसे भी वेस्ट हुए, हेल्थ पे भी बुरा इंपैक्ट लिया और मजा भी नहीं आया। तो ये सर्टेनिटी अनदर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, ठीक है। प्योरिटी, कि कितना जो प्लेजर है, क्या उसके बाद कोई पेन होने वाला है। सुबह उठ के हैंगओवर हो रहा है, परेशानियां हो रही हैं, आ रही बात समझ में? द पॉइंट आई एम मेकिंग इज ही गेव दिस, बिल्कुल याद मत करना, मैं समझाने के लिए दिया हुआ है, और लिखने भी मत उसको नोट्स में, कभी काम में नहीं आने वाला है। बस वो ये समझाना चाह रहे थे कि कोई भी प्लेजर और पेन है उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, एंड सो दैट आप ओवरऑल क्वांटिटेटिवली एनालाइज कर सको कि कौन सा प्लेजर और पेन का ओवरऑल कॉम्बिनेशन क्या निकल के आ रहा है। इन पैरामीटर्स पर आप जजमेंट ले लो, आपको एक स्केल देके चले गए वो। सो इनका पर्सपेक्टिव ये था, ईच वन ऑफ अस दैट एक्शन इज मॉरल, जिसमें हम अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करते हैं, पेन को मिनिमाइज करते हैं, और एवरी पेन एंड प्लेजर कैन बी एक्चुअली क्वांटिफाइड ऑल्सो। दिस वॉज द पर्सपेक्टिव ऑफ बेंथम। आ रही बात समझ में? और इनके हिसाब से देयर इज नो क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेजर्स। द काइंड ऑफ sexual pleasures that you might get out of rape and that you get out of consensual sex, for him it was both same thing.
चोरी करके पिज्जा खा रहे हो या खरीद के पिज्जा खा रहे हो, फॉर हिम बोथ ऑफ देम हैव द सेम थिंग, मोर और लेस दे आर द सेम थिंग. सो बेसिकली द काइंड ऑफ प्लेजर्स है ना, एक प्लेजर है आपके सिलेक्शन होने का, और एक प्लेजर है लेट्स से कुछ खाना खा के आपको अच्छा लगने का. सो प्लेजर इज प्लेजर. दैट इज व्हाट हिज पर्सपेक्टिव वाज, क्वांटिटेटिव प्लेजर, कि एवरी प्लेजर कैन बी क्वांटिफाइड, और जो प्लेजर है वो सब सेम ही है. देयर इज नो क्वालिटेटिव डिफरेंस, मोर और लेस. फिर भी इंसान जो है, ह्यूमंस हैं, दे आर गवर्न्ड बाय 4 सैंक्शंस, जिनसे उनका ओवरऑल डिसीजन मेकिंग गवर्न होता है कि वो कौन सा डिसीजन करेंगे. एक तो है डेथ, आदमी मौत से डरता है, एंड दैट इज वाई यू डू नॉट मैक्सिमाइज योर इमीडिएट प्लेजर ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल टू द एक्सटेंट दैट यू किल योर सेल्फ, बिकॉज अल्टीमेटली यू फियर डेथ ऑल्सो. That is what that act as a sanction on your pleasure seeking desires. कि यार बहुत ज्यादा मीठा खा लिया, मीठा खाने में मजा तो आ रहा है पर मर जाऊंगा, शुगर हो रखी है. So that is fear of death. Second important is fear of punishment, political punishment. रूल कोई तोड़ दो, लॉ कोई तोड़ दो, तो अगर मैं लॉ तोड़ूंगा तो फिर मुझे पेन मिलेगा. अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, फियर ऑफ बॉयकॉट. सोसाइटी आपका बॉयकॉट कर देगी, और अल्टीमेटली फियर ऑफ गॉड. सो इट इज बिकॉज ऑफ दीज सैंक्शंस कि भगवान से कोई डरता है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, या भगवान मुझे आगे जाके पनिश करेगा, या कोई समाज से डरता है कि यार फॉर एग्जाम्पल इंसेस्ट टैबू इज समथिंग जो जनरली समाज अगर कोई ऐसा इस चीज में इंडल्ज करता है तो समाज उसका बहिष्कार करेगा. समझते हैं इंसेस्ट टैबू? ठीक है. दैट इज अबाउट द आई थिंक विद इन क्लोज रिलेशनशिप यू आर हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप. ठीक है. सो दैट इज समथिंग. तो वैसा चीज में कोई इसलिए इंडल्ज नहीं करता बिकॉज वी फियर सोशल बॉयकॉट. हमारी जो एनिमलिस्टिक डिजायर्स हैं, हमारे सबके अंदर जो एनिमलिस्टिक डिजायर्स हैं, वी कंट्रोल देम. ए मे बी बिकॉज वी फियर डेथ, बी बिकॉज वी फियर लॉ, और अगर लॉ वहां पे नहीं है देन वी फियर समाज ऑल्सो. वी फियर समाज ऑल्सो, अल्टीमेटली वी फियर गॉड. सो हमको पता है कि ये सब करने से पेन आएगा, इसलिए हम वो प्लेजर सीख करना अवॉइड करते हैं. सो दैट वाज द ओनली मॉरल थिंकिंग परहैप्स जो इनके पार्ट पे आ रही थी, बेंथम के पार्ट पे आ रही थी. सो इनके लिए अगर आपको डिसीजन मेकिंग आप कहें तो बेसिकली दैट एक्शन इज मॉरल दैट मैक्सिमाइजेज प्लेजर. इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? कभी नहीं पूछेगा आपसे. क्वेश्चन आएगा, आपको कोटेशन दे देगा, और वो कोटेशन इस बात को सपोर्ट कर रहा होगा दैट ईच वन ऑफ अस शुड स्ट्राइव फॉर मैक्सिमाइजिंग प्लेजर. ऐसे दे देगा कमेंट. तो इसमें कुछ मेरिट भी है, जो मेरिट आप बताएंगे कि प्लेजर और पेन का मतलब है कि ये पेन है, इस पेन को देखते हुए अपने प्लेजर को कंट्रोल करोगे कि भैया इसलिए मुझे अल्कोहल एडिक्ट नहीं बनना है, इसके लिए मुझे समाज में से गड़बड़ काम नहीं करने, समाज मुझे एक्सेप्ट ही ना करे. आ रही मेरी बात समझ में? बट अल्टीमेट बैरोमीटर इज कि इनके लिए एवरीथिंग कैन बी क्वांटिफाइड. ये भी अपने आप में आ सकता है आपको लिए स्टेटमेंट, इन्हीं का स्टेटमेंट उठ के आ सकता है कि अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज एंड दे कैन बी क्वांटिफाइड. ऐसा करके कुछ भी आ सकता है. इमोशंस, अल्टीमेटली इमोशंस कैन बी क्वांटिफाइड, एंड देन यू मे बी आस्क्ड टू कमेंट ऑन दैट. इस फॉर्म में क्वेश्चन आएगा. ऐसे भी आ सकता है, ईच वन ऑफ अस शुड स्ट्राइव फॉर द हैप्पीनेस, शुड स्ट्राइव फॉर द प्लेजर, बिकॉज इफ ऑल ऑफ अस आर हैप्पी देन कलेक्टिवली वी ऑल आर हैप्पी. इफ वी आर हैप्पी इंडिविजुअली, कलेक्टिवली ऑल्सो वी विल बी हैप्पी. ऐसा भी आ सकता है. तो आप देख रहे हैं इन सारे स्टेटमेंट में सीधा सीधा बेंथम नहीं बोला है आपको. इन सारे स्टेटमेंट में बट आपको समझ में आना चाहिए कि कहां से उठ के आ रहा है स्टेटमेंट. क्वेश्चन ऐसे आएगा एक्चुअल एग्जाम में.
So as per Jeremy Bentham, everything can be quantified. There is no qualitative difference between pleasures, different types of pleasures, and each of us should try to maximize pleasures and minimize pain. And the four important pain जो बोलते हैं, जो पर sanctions करते हैं हमारे pleasure seeking tendency को, are four. That is God, government, society, and ultimately the death, nature. But he was criticized by John Stuart Mill, जो बिलीव करते हैं क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म में, क्योंकि वो मानते हैं कि प्लेजर एंड पेन कैन नॉट बी क्वांटिफाइड एज दे आर सब्जेक्टिव एंड वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. As they are subjective and vary from person to person. इनको रसगुल्ला खा के कितना स्वाद आएगा और इनको रसगुल्ला खा के कितना स्वाद आएगा, we cannot quantify that part. They vary. इनका individual degree of attachment भी vary करेगा. तो मीठा पसंद ही ना हो इनको. आ रही मेरी बात समझ में? So जो उनका जो ये कैलकुलस है कि सारा प्लेजर एक जैसा, ऐसा भी नहीं है. He also says that there are certain pleasures which are superior than others. There is qualitative difference between the pleasures. There is qualitative difference between the pleasures. Suppose आपने देखा होगा कि जो लोग ये स्मोक क्या करते हैं, गांजा वगैरह और ये सब यूज करते हैं, सो बाय एक्सपीरियंस दे टेल्स कि माइंड काफी काम उनका हो जाता है, उसके बाद शांत हो जाता है. इनफैक्ट काफी सारी मेंटल डिसऑर्डर में दवाओं में भी दिया जाता है, पॉपी सीड्स दिए जाते हैं दवाओं में, ठीक है, और उसका पर्सपेक्टिव ये बताया जाता है कि से मेंटल कामनेस आती है. तो अगर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मेंटल कामनेस ही है, तो एक मेंटल कामनेस जो शायद नशा करके आ रही है और एक मेंटल कामनेस जो परहैप्स मेडिटेशन करके आ रही है, दोनों में ही सेइंग देयर विल बी क्वालिटेटिव डिफरेंस. And there are certain kind of pleasures which are superior than others. जैसा कि मैंने आपको रेप और कंसेंसुअल सेक्स में डिफरेंस बताया. So certain kind of pleasure, perhaps the consensual sex pleasure is more superior than the rape pleasure. That is what Mill is saying. And that is why he says that if the pleasures are associated with region and other emotions like passion, that led to benefit for the larger number of people. Basically, larger society का जो फायदा कराते हैं, वो प्लेजर की हम बात करते हैं. So उन प्लेजर्स को बोल रहे हैं दे आर इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल प्लेजर्स एंड दे आर हायर ऑर्डर प्लेजर्स. दे आर हायर ऑर्डर प्लेजर्स. आप एक तो खुद ही खुद खाना चाहो, सब कुछ खुद तो खुद को मजा आ रहा है, लेकिन एक मजा देने में भी आता है. सो ही इज सेइंग जो देने वाला मजा है दैट इज सुपीरियर, जो खाली खुद के रिस्पेक्ट में सोच के हम प्लेजर लेते हैं. सो बेसिकली ही इज सेइंग देयर इज qualitative difference, there is hierarchy of pleasures and there is certain intellectual and spiritual pleasures. गांधी जी कोई आजादी मिली होगी या मूवमेंट्स उन्होंने किए होंगे, जो स्ट्रगल उनका रहा होगा, उससे जो प्रोग्रेस हो रही होगी, परहैप्स उनको उससे ज्यादा मजा रहा होगा, रादर देन वो खाली बैरिस्टर बने रहते और खूब पैसा कमाते और लेविश लाइफ जीते. मैं आपको अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ देयर माइट बी डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजर्स. और इसीलिए ये बोलते हैं ए कॉम्पिटेंट जज इज वन हु हैज एक्सपीरियंस बोथ बॉडीली प्लेजर्स एज वेल एज इंटेलेक्चुअल वंस एंड ही प्रेफर इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स ओवर अदर. बेसिकली एनीवन हु इज प्रेफरिंग दीज हायर ऑर्डर प्लेजर इज समवन जो कॉम्पिटेंट जज है. एंड इसके लिए एवरी मैन हैज हिज नेचुरल सेंस ऑफ डिग्निटी कि वो उस क्वालिटी ऑफ प्लेजर को टेस्ट कर सके. इसलिए वो बोलते हैं इट इज बेटर टू बी ए ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड देन पिग सेटिस्फाइड. ये अपने आप में क्वेश्चन कोटेशन बेस्ड में आ सकता है. इट इज better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied because pig is like an animal जिसको क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं पता है डिफरेंट प्लेजर्स के बीच में, बट ह्यूमन बीइंग को क्वालिटेटिव डिफरेंस पता है. वाई? बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेंस ऑफ डिग्निटी एंड दिस कॉम्पिटेंसी, जो को जज कर पाए कि कौन सा प्लेजर बेहतर है, कौन सा प्लेजर उसको परसू नहीं करना चाहिए. एंड दैट इज वाई ही इज सेइंग परहैप्स
जो ह्यूमन बीइंग है वो डिससेटिस्फाइड हो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो सर्टेन काइंड ऑफ प्लेजर को छोड़ेगा, वो प्लेजर वर्दी प्लेजर्स नहीं है, रादर देन ए पिग सेटिस्फाइड। पिग का मतलब कोई भी एनिमल या कोई भी ह्यूमन जो इस डिफरेंस को नहीं समझ पा रहा है कि हाउ सर्टेन प्लेजर्स आर नॉट वर्दी सीकिंग फॉर। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? सो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग दैट पर्सन शुड एक्ट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। एंड जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल की ओर जाएंगे, दैट लीड टू द बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम लोगों की तरफ जाएंगे, तो ये प्लेजर सुपीरियर प्लेजर होगा जो केवल खुद के बेनिफिट के लिए आप सोचेंगे। तो बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग कि दैट एक्शन is moral which maximizes the benefit for the happiness for the maximum number of people and for the maximum number of time, क्योंकि वही प्लेजर सुपीरियर प्लेजर है। अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं, इट विल बी वेरी मच टैक्सिंग ऑन यू, काफी पेन से आप गुजर रहे होंगे, बट जब आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन से जो खुशी आपके परिवार वालों को होगी, आपके दोस्तों को होगी, हमको होगी, वो जो खुशी है दैट इज फार फार बेटर देन सुपीरियर देन वॉट एवर इंडिविजुअल लिटिल प्लेजर यू माइट गेट आउट ऑफ इनडिसिप्लिन। अभी अगर आप प्लेजर परस्यू करना शुरू कर दें, उस पेन को हटा दें, अरे मस्ती करते हैं सर, क्या पढ़ाई लिखाई है, तो ये प्लेजर छोटा प्लेजर है और बाद वाला प्लेजर बड़ा प्लेजर है, ये वो समझाना चाह रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? सो बेसिकली ही ऑल्सो एडेड वन मोर सैंक्शन, एक सैंक्शन और होता है अपार्ट फ्रॉम गॉड, समाज, पॉलिटिक्स एंड नेचर, दैट इज डेथ, दैट इज कंसाइंस। अनदर इंपॉर्टेंट सैंक्शन इज कंसाइंस, कि आदमी के खुद के गले से कुछ चीजें नहीं उतरती हैं, सर्टेन टाइप ऑफ प्लेजर्स आदमी के गले से नहीं उतरते हैं। आप में से भी हम कितना भी खराब क्यों ना सोचें हम, लेकिन चोर का मैंने एग्जांपल लिया कि उसका भी एक कंसाइंस था कि मैं कोविड वैक्सीन को चोरी नहीं करूंगा। तो बेसिकली ईच वन ऑफ अस हैज कंसाइंस, जो अनदर सैंक्शन है जो हमारे प्लेजर को लिमिट करता है। इस चीज को आप इन्वोक करेंगे कहां पे? हम कंसाइंस पढ़ेंगे या कंसाइंस का कोई भी आंसर करेंगे, या जहां भी आपको यह बताना होगा कि कंसाइंस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर ह्यूमन बीइंग। सो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं, सो देयर आर टू ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट इन यूटिलिटेरियनिज्म, इन टेलियोलॉजिकल स्कूल ऑफ एथिक्स। वन इज फोकसिंग ऑन द एक्ट इटसेल्फ, इंडिविजुअल एक्ट, और उसको भी वो क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहा है, वो खाली प्लेजर देख रहा है। दूसरा चीज हैप्पीनेस देख रहा है, ज्यादा नंबर लोगों की बात देख रहा है और ज्यादा बड़े स्केल पे देख रहा है, रूल्स के टर्म्स में बात कर रहा है। दैट इज हाउ बोथ स्कूल ऑफ थॉट आर डिफरेंट देन ईच अदर। आ रही मेरी बात समझ में? ये जो पहला स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें केवल प्लेजर परस्यू करने की बात करी जा रही है, इसी को हीडोनिज्म भी कहा गया है। हीडोनिज्म, जिसमें आदमी अपने खाली प्लेजर को परस्यू करता है, बस हीडोनिस्ट टेंडेंसी, और वो जस्टिफाई करता है कि यार सब बढ़िया है, मुझे तो फायदा हो रहा है ना, हीडोनिज्म। एंड इसी को क्वेश्चन किया है बाद में मिलने कि भाई आपको फायदा हो रहा है, लेकिन ये जो प्लेजर है ये लो लेवल ऑफ प्लेजर है। बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन परहैप्स एन इंपोर्टेड अल्कोहल एंड द देसी ठर्रा दैट यू विटनेस। वो ये कह रहे हैं कि यार जो मजा तुमको इससे आएगा वो कुछ भी नहीं है, स्ट्राइव फॉर द हायर ऑर्डर प्लेजर। आ रही मेरी बात समझ में? ये क्लियर हो गया अभी आपको सबको? अभी मैं जो कॉन्सिक्वेंस मेजर कर रहा हूं वो मेजर कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, इन टर्म्स ऑफ रूल्स, इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल दिस प्रिंसिपल। और इसके हिसाब से मैं खाली इमीडिएट प्लेजर देख रहा हूं, अपना ही प्लेजर देख रहा हूं, क्वांटिफाइड तरीके से देख रहा हूं, दोनों में डिफरेंस है। आ रही बात समझ में? एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन या तो इस पार्ट पे आ जाएगा कि आदमी को प्लेजर मैक्सिमाइज करना चाहिए, प्लेजर इज द ओनली बैरोमीटर टू डिसाइड, तो क्रिटिक आप इससे भी कर देंगे और ओवरऑल इसका जो क्रिटिक होगा उससे भी कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा है? एक तो इसी से क्रिटिक होगा कि हमको खाली प्लेजर परस्यू नहीं करना चाहिए, तो वो तो यहां से आ जाएगा।
ठीक है, और एक इस चीज का भी तो क्रिटिक होगा कि हमको ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे खाली डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए, प्रिंसिपल भी मैटर करते हैं। जो इस ओवरऑल का क्रिटिसिज्म है वो भी पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। यू नीड टू लर्न हाउ टू अप्लाई दिस बोथ टाइप ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट्स। आई मेरी बात समझ में? तो ओवरऑल मैं दिखाता हूं अभी आगे। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि और कॉन्सिक्वेंसेस के और कौन से स्कूल ऑफ थॉट है। अनदर स्कूल ऑफ थॉट इज एथिकल ईगोइज्म। एथिकल ईगोइज्म, एथिकल ईगोइज्म में इट अनलाइक द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, इसमें बात होती है केवल सेल्फ इंटरेस्ट की, केवल सेल्फ इंटरेस्ट की ये बात करता है। और ये बोलता है कि पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, एंड इफ दे आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, देन if they are motivated by self-interest, then they should pursue those self-interest. So that action is ethical अगर उनका self-interest को कोई fulfill कर रहा है तो। Because ultimately society is a collection of individuals only. अगर individually हम सब हैं, आप भला तो जग भला, individually सब अच्छे हैं तो पूरा सोसाइटी अच्छा हो जाएगा। क्यों इतना ग्रैंड स्टैंडिंग विजन लगा के चले सोसाइटी सोसाइटी सोसाइटी, और उसके नाम पे इंडिविजुअल राइट्स का हनन करें। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट थीम की ओर लेके जा रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन बनता है, अब मैं आपको लेके जा रहा हूं कि इन द गार्ब ऑफ ओवरऑल सोसाइटल इंटरेस्ट हाउ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट आर एक्सप्लॉइटेड, एंड टू काउंटर दैट दिस स्कूल ऑफ थॉट इज सेइंग देयर शुड बी एथिकल ईगोइज्म। आदमी के जो इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट हैं उनको भी देखना चाहिए। अल्टीमेटली दैट एक्शन इज एथिकल जो इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज कर रहा है। आप कंफ्यूजन मत करना उस पहले वाले से, हिडोनिज्म से। वो ओवरऑल की बात करता है, एक्ट की भी बात कर रहा है तो ओवरऑल की बात कर रहा है, ये एकदम इंडिविजुअलिस्टिक बात कर रहा है। डिफरेंस है दोनों में, बट ये भी कॉन्सिक्वेंस देख रहा है कि वो एक्शन एथिकल है जो मेरा इंडिविजुअल का फायदा कराए। अगर मैं इससे कंपेयर करूं बेंथम से, तो परहैप्स मैं देखूंगा कि जो लोग हैं, यूजफुलनेस टू द पीपल, लोगों के लिए, हम सब के लिए, हम सब मिलकर ड्रग्स कंज्यूम करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं देखूंगा कि ड्रग्स कंज्यूम करना एथिकल है या नहीं। यार इसको काट मत देना यहां से, ठीक है, कि अगर ये ड्रग्स करना एथिकल है या नहीं है, यार सबका फायदा हो रहा है, सब लोग बॉडीली जो हमारा जो बॉडी प्लेजर है उसको डिराइव कर रहे हैं, तो ये बढ़िया है, इसके हिसाब से बढ़िया है। ठीक है, तो ये पीपल ही देख रहा है, बट ये एसेंशियली इंडिविजुअल देख रहा है, और ये दोनों कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं। क्लैरिटी आ रही है? क्लैरिटी आ रही है? इन सारे स्कूल ऑफ थॉट में एक कॉमन थिंग है कि ऑल ऑफ देम आर लुकिंग एट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी एक्शन, सो दैट एक्शन इज एथिकल जो आपका सेल्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करे, दैट इज कॉल्ड एथिकल ईगोइज्म। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट इज ethical egoism does have merit, even though at the face of it will look कि सब कितनी गलत बात कर रहे हो आप। No, it has merit and that is where questions will be formed. One important strand of feminism movement और जो feminist thought है वो ये है कि महिलाओं को जो इतना ग्लोरीफाई किया जाता है in terms of goddess, देवी हो, आप तो त्याग की, बलिदान की मूर्ति हो, that is in fact euphemism to exploit women. उनको ग्लोरीफाई और ये सब इसलिए कराया जाता है, ये स्कूल ऑफ थॉट है, ताकि उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो सस्टेन्ड हो सके, उनके त्याग को, उनके बलिदान को। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, उनको बोला जाता है कि भैया तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा पति अच्छा हो जाएगा, तुमने ये कर लिया तुम्हारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, तुमने ये कर लिया तुम्हारी फैमिली अच्छी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। सो क्या उस महिला की जिंदगी, इज इट ऑलवेज अबाउट द अदर्स? इज इट नेवर अबाउट हरसेल्फ? That is where ethical egoism will come into the picture in every scenario in which for the larger perspective अगर individual rights को हम हनन कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको वापस ले रहे हैं, उसको exploit कर रहे हैं, that is where ethical egoism will come into the picture. आ रही मेरी बात समझ में आपको?
तो बेसिकली एथिकल ईगोइज्म उस तरह के एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, एंड इट ट्राइज टू प्रमोट इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट, बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट सोसाइटी, समाज के लिए, है ना, बोल देंगे आपको कि पाकिस्तान के ये जो बॉर्डर पे अब जो लगी डिमोनेटाइजेशन की लाइन लगी, तो क्या बोला गया कि बॉर्डर पे सिपाही इतनी देर खड़े हैं तो आप एटीएम की लाइन में नहीं लग सकते। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, यही एथिकल ईगोइज्म का एग्जांपल है, बहुत अच्छा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इन द नेम ऑफ पैट्रियोटिज्म, इन द नेम ऑफ ग्रेटर गुड, इन द नेम ऑफ कि सोल्जर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्या आप 4 दिन पैर पे खड़े नहीं हो सकते अपने इस लाइन में? आप बेसिकली जस्टिफाई कर रहे हैं जो उनके संग गलत हुआ है उसको, एंड दैट इज वेयर दिस एथिकल ईगोइज्म विल कम इनटू द पिक्चर। इसकी यूटिलिटी पिक्चर में आती है कि भाई ये बड़े बड़े ग्रैंड स्टैंडिंग विजन की बात मत करो, मुझे तो भैया यही बताओ कि जो इंडिविजुअल हैं इनको अपना बेस्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हर इंडिविजुअल को अपना बेस्ट 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 मिल जाए तो समाज अपने आप बेस्ट हो जाएगा। ये इस स्कूल ऑफ थॉट से बात करता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसकी यूटिलिटी दिख रही है आपको? इसकी यूटिलिटी दिख रही है आपको? ये बहुत काम आएगी आपको काउंटर पर्सपेक्टिव देने में, क्योंकि बहुत लोग देंगे नहीं, बहुत लोग देंगे नहीं, बहुत लोग ऐसा लगेगा कि सेल्फिश हो रहा है। सेल्फिश नहीं है। यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल लिबर्टी, यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल राइट्स। अभी नहीं, रुको, आ रही बात समझ में? सो बेसिकली एक तरफ हम ज्यादा नंबर ऑफ पीपल का लिए कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं, एक तरफ हम क्वांटिटेटिव तरीके से देख रहे हैं, एक तरफ हम क्वालिटेटिव तरीके से देख रहे हैं, एक तरफ हम इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में खाली देख रहे हैं। देख हम यहां भी कॉन्सिक्वेंस ही रहे हैं कि उस एक्शन से उसका फायदा कितना हो रहा है। महिलाओं के कैरियर में जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, कैरियर ब्रेक आता ही आता है बिकॉज ऑफ मैटरनिटी, बिकॉज ऑफ मैटरनिटी। बट उसके बाद नॉट मैनी ऑफ देम आर एबल टू रिटर्न टू द वर्क, नहीं वापस करियर पर परस्यू करते, क्योंकि देयर इज डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन ऑफ मैटरनल, वो जो केयर वाला पार्ट होता है। तो अब अगर ये एक्शन लेना हुआ, ये डिसीजन लेना पड़ रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि उस महिला के इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से कितना सही था कि वो भी तो अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाई। पता है वो स्पेस साइंटिस्ट बनती, वो कुछ लाइफ में बड़ा करती, बट वो बंध के रह गई इस मदर वाले रोल में। तो दैट इज अ काउंटर पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो केयर जो है ये परहैप्स इक्वली डिवाइडेड नहीं हुई हस्बैंड और वाइफ में। आ रही बात समझ में? सो दैट इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ एथिकल ईगोइज्म। नाउ सेकेंड पार्ट इज एथिकल अल्ट्रुइज्म। ये इसका एकदम उल्टा है। इसमें भी हम कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं, बट इसमें कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं, अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकार, पर उपकार, दूसरों के ऊपर उपकार। ठीक है, सो एथिकल अल्ट्रुइज्म में हम बेसिकली कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं दूसरों के फायदे के लिए। मुझे छोड़ के सबका फायदा हो जाए तो वो अच्छा चीज है। अगर मेरी जान जाने से तुम सबकी जान बच रही है, देन इट इज ए गुड। मैं यहां पे अपना सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू नहीं कर सकता, मैं केवल यहां पे परोपकार ही परस्यू करूंगा। तो मेरा जो क्राइटेरिया है कॉन्सिक्वेंस जज करने का, वो परोपकार ही है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट अगर एथिकल ईगोइज्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, कैन बी सीन एज अ कॉन्सिक्वेंसेस थ्योरी विच प्रिस्क्राइब्स दैट इंडिविजुअल टेक्स एक्शन दैट हैव द बेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस फॉर एवरीवन एक्सेप्ट फॉर हिमसेल्फ। ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है महिलाओं के लिए, because that is what they essentially do, that they keep the best interest of everyone up front apart from themselves. मां के लिए क्या, पापा के लिए क्या, ससुर जी के लिए क्या, सास के लिए क्या, बहन के लिए क्या, भाई के लिए क्या, बेटे के लिए क्या, पति के लिए क्या, बेटी के लिए क्या, एक्सेप्ट खुद के लिए। सो एथिकल अल्ट्रुइज्म। ठीक है, अब यहां पे पॉइंट आता है कि ऑफ कोर्स इनके नेगेटिव्स भी हैं। अगर मैं क्वांटिटेटिव वाले के नेगेटिव तो पता पड़ गए हमको, क्वालिटेटिव वाले आर्गुमेंट से एथिकल ईगोइज्म के भी नेगेटिव हैं कि जब आदमी हर कोई अपना ही अपना सोचने लग जाएगा, देन हु विल इंश्योर कि जो इंडिविजुअलिटी है ये कम से कम कलेक्टिवली एक ही गोल की तरफ मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम में से अगर ऑप्शन दिया जाए कि भैया सपोज कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं है, हम ही को आपस में डिसाइड करना है कि बॉर्डर पे कौन जाएगा। सपोज कोई एग्जाम नहीं है और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, हम बस यही लाइफ है जिसमें हम जी रहे हैं और हम ही को आपस में डिसाइड करना है कि बॉर्डर पे कौन जाएगा। तो क्या लगता है कितने लोग वॉलंटियर करेंगे कि मैं बॉर्डर पे जाऊंगा?
नहीं करेंगे उतने लोग वॉलंटियर। सब बोलेंगे सर एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर लूंगा, मैं मैनेजमेंट का कर लूंगा, मैं घर बैठ जाऊंगा, मैं फलान कर लूंगा, ढेक कर लूंगा। द पॉइंट इज टू मच ऑफ एथिकल इगोइज्म विल क्रिएट सच प्रॉब्लम इन सोसाइटी। मैं क्रिटिकल बता रहा हूं इथिकल इगोइज्म का। सिमिलरली जो एथिकल अल्ट्रुइज्म है उसका सबसे बड़ा उसका डिमेरिट यही है कि इट इंक्लूड्स ए डेंजर ऑफ द स्टेट एनफोर्सिंग द मॉरल आइडियल। जो डीमोनेटाइजिंग समय हुआ कि इट रिलाइज ऑन द सम्स ऑफ अ मिस्टिसिज्म, कि हम अपना इंटरेस्ट ना देखें, हम बस दूसरों का इंटरेस्ट देखें। पॉसिबल कैसे है? इट रिलाइज ऑन दिस मिस्टिसिज्म कि भैया हम दूसरों का इंटरेस्ट देखेंगे, परोपकार की भावना करेंगे, अपना नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर कोई ऑथोरिटेरियन स्टेट है तो इस फिलॉसफी को बहुत तरीके से मिसयूज कर सकता है, क्योंकि वो कभी इंडिविजुअल राइट्स की बात करेगा ही नहीं, वो ग्रेटर गुड के लिए हमेशा आपके राइट्स को हटाता रहेगा। क्लियर हो रहा है आपको? तो ओवरऑल हमने देखा कि जो डिसीजन मेकिंग है एथिक्स में वो कॉन्सिक्वेंसेस पे होती है। कई बार कॉन्सिक्वेंसेस में क्वांटिटेटिव तरीके से हो सकती है, क्वालिटेटिव तरीके से हो सकती है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से हो सकती है और एक्सटर्नल लोगों के लिए हो सकती है। इन सब में कॉन्सिक्वेंसेस पे मैं डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं। आ रही बात समझ में आपको? नाउ लेट अस लुक एट द मेरिट ऑफ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिजल्ट ओरिएंटेड दैट मैटर्स अल्टीमेटली। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मेरिट ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट कि कॉन्सिक्वेंसेस कम से कम अच्छे इंश्योर कर रही है। सेकेंड इज इट इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। थर्ड इज अल्टीमेटली इट इज ए मॉरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो उसमें क्या मेजॉरिटी से डिसीजन मेकिंग हो जाती है मोर और लेस। तो ये भी तो वही कह रहा है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ये भी तो मॉरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक्ट एंड रूल यूटिलिटेरियनिज्म की बात कर रहा हूं। एंड अल्टीमेटली इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स, क्योंकि हर बार आप कॉन्सिक्वेंस के टर्म्स में डिसाइड कर रहे हैं तो जो भी रूल्स के कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको आप पहले ही सॉर्ट आउट कर लोगे। लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट डिमेरिट इज कि अब ये बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे इस हर एक चीज पे क्वेश्चन बनता है। वन ऑफ द बिगेस्ट डिमेरिट इज इट इज नॉट जस्ट अबाउट द टोटल हैप्पीनेस बट ऑल्सो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैप्पीनेस दैट इज इंपॉर्टेंट। इन द केस ऑफ लैंड एक्विजिशन, अगर मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूं तो मैं देखूंगा कि यार ओवरऑल तो बहुत फायदा हुआ, डैम बने, माइंस बनी, इतना जीडीपी बढ़ गया, पर वो फायदा किसके लिए हुआ? वो फायदा किसके लिए हुआ? हमको बिजली मिली, हमको कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मिले, माइंस के इंडस्ट्रीज को पैसा मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। जो वहां के एक्चुअल ओनर्स थे उनको क्या मिला? उनको क्या मिला? अरे मेरी बात समझ में आपको? So basically it is not just about total happiness but also about the distribution of the happiness. Of all the developmental projects, more than 60% of the people are displaced persons are tribals. जितने भी आजादी के बाद डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनमें जो डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं उसमें मोर देन 60% आर ट्राइबल्स। तो बेसिकली कम से कम 60% फायदा भी उनको पहुंचना चाहिए था डेवलपमेंट का। और एक्चुअल में ट्राइबल का वो कितना है पॉपुलेशन परसेंटेज? 8%। तो डेवलपमेंटल रिफ्यूजी जो परसेंटेज है वो 60%, कॉस्ट में है 60% रिप्रेजेंटेशन और एक्चुअल न्यूमेरिक है 8% और बेनिफिट में उससे भी कम होगा। तभी तो ट्राइबल सब प्लान की रिक्वायरमेंट पड़ी कि 8% एक्सपेंडिचर होना चाहिए ट्राइबल्स के लिए। अगर हो रहा होता 8% एक्सपेंडिचर जरूरत थोड़ा पड़ती ट्राइबल सब प्लान की। आ रही मेरी बात समझ में? सो इट इज नेवर अबाउट द ओवरऑल कॉन्सिक्वेंसेज ओनली, इट इज अबाउट द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑल्सो। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिमेरिट जो इस स्कूल ऑफ थॉट की है कि ये वो इंश्योर नहीं करता, ये केवल टोटलिटी को देखता है।
एंड देन इट माइट लीड टू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ सम पीपुल, क्योंकि मीन्स पे फोकस नहीं है. अफस्पा लगाना, सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा वायलेशन होना, ये जस्टिफाई कर दिए जाते हैं क्योंकि ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है सपोजिटली इसलिए. लेकिन जो मीन्स अडॉप्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशंस के, इन टर्म्स ऑफ अब्यूज ऑफ पावर के, कस्टोडियल डेथ एंड टॉर्चर के, उस पर कोई ध्यान नहीं देता बिकॉज वो जस्टिफाई हो जाते हैं. सो दैट इज अगेन नॉट ए गुड थिंग कि मीन्स ऑल्सो दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एट टाइम्स ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं. इसी के लिए एथिकल इगोइज्म की बात होती है. एंड देन देयर इज डिफरेंट परसेप्शन ऑफ हैप्पीनेस. भूटान जीडीपी हम मेजर करें कि ओवरऑल बेनिफिट होगा कि जीडीपी बढ़ जाएगा. भूटान कहेगा कि हमें जीडीपी से मतलब ही नहीं है, हमें तो हैप्पीनेस देखनी है जी. सो किस कंट्री को, किस कम्युनिटी को, किस लोगों को कौन सी चीज को मैक्सिमाइज करना है जिससे उनका हैप्पीनेस बढ़े, ये तो डिफरेंट है. एवरीवन स्ट्राइव्स फॉर हैप्पीनेस. डू यू अग्री? दिस क्वेश्चन यूपीएससी आस्क्ड. So there is lots of subjectivity in the happiness, and ultimately there is difficulty to measure happiness. different level of happiness आपको experience हो सकती है, कैसे measure करोगे? And ultimately चूंकि universality नहीं है, चूंकि conditionality है, that is why there will be slippery slope in always in the picture. कि आप इतने ज्यादा कंडीशनल हो जाओगे कि आप फिर उसको अपने हिसाब से चेंज करने लगोगे चीजों को. आइए मेरी बात समझ में? आपको ओवरऑल स्कूल ऑफ थॉट अब समझ में आया कि स्कूल ऑफ थॉट किस पे फोकस करता है, इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसकी डीमेरिट्स क्या हैं. डीमेरिट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं डीमेरिट को आप किसी ना किसी तरीके से केस स्टडी में लिखने वाले हो. आ रही बात समझ में? यस और नो? नोट कर लीजिए फिर यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे. मेरिट से ही स्टार्ट हुआ था ना आज तो क्लास, तो करा चुका था कल. होती कहाँ है? उन लोगों का एग्जाम्पल हो सकता है जो अपनी जान खतरे में डाल के कुछ काम करते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, सेक्रीफाइस दे देते हैं. वो ऑल्ट्रिज्म का एग्जाम्पल है. सो लेट अस स्टार्ट विद वर्च्यू एथिक्स नाउ. हाँ, डाउट बैठ के पूछ लो भाई. हाँ, लिख दो. पूछेगा नहीं कभी आपसे. आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, इसमें इंडिविजुअलिज्म पे ही फोकस है.
उसी के राइट्स पे, उसी के डिग्निटी पे, सब उसी पे फोकस्ड है पूरा। हाँ, उसी का तो बता रहा हूं। क्लास के बाद बात कर लेंगे इस पे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मॉरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है कि आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हो, मेजोरिटी लोगों के लिए जो फायदा होता है वो कर देते हो, और वो डेमोक्रेटिक मानते हो उसको। वोटिंग करके जो मेजोरिटी आई, गवर्नमेंट बना ली, जीत गए, है ना, वो डिसाइड कर रही है पॉलिसी। तो इसमें भी तो वैसे ही कर रहे हैं हम कि अल्टीमेटली जो हैप्पीनेस ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लोगों के लिए, मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए जो फायदे की चीज है वो मॉरल है। तो तभी तो ट्राइबल को डिस्प्लेस कर देते हो, क्योंकि पूरे देश के लिए फायदा है, ट्राइबल को जो नुकसान है तो नुकसान झेलें ट्राइबल, उस सेंस में। एथिकल, हाँ, इट मे नॉट कॉज, अगर कोई वास्तव में बिलीव करता है कि उसकी जिंदगी दूसरों के लिए बनी है तो क्यों उसको डिसोनेंस होगा? मदर टेरेसा को क्यों डिसोनेंस होगा? इट मे कॉज, अगर जबरदस्ती फोर्स करवाया जा रहा है, आपको सती प्रथा करवाया जा रहा है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है, आपका मन है जीने का, और समाज कह रहा है कि नहीं, पति के लिए मरना पड़ेगा, समाज के लिए मरना पड़ेगा, तब डिसोनेंस हो जाएगा आपको। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड करता है, तो क्लियर है, इसमें डाउट है नहीं। पहले पहले एक एक करके ना, फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि तभी तो रिजिड नहीं है ये, तभी तो फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइड हो रहा है। झूठ बोल के आईएएस बन रहे हो तो भी सही है, बिना झूठ बोले आईएएस बन रहे हो तो भी सही है, आईएएस बन जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेक्सिबिलिटी दे दी ना आपको। पहले इस पे तो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, बोल ही नहीं रही हो, अभी समझ में आ गया ना। अब अगला चीज है कि कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स को अवॉइड करता है। वो इसलिए अवॉइड करता है क्योंकि अगर आप देखेंगे ब्यूरोक्रेसी को, या आप जो लोग मीन्स को ही एंड मान लेते हैं, वो लार्जर पर्सपेक्टिव भूल जाते हैं कि सच, हमेशा सच बोलना है या हमेशा रिटन फॉर्म में ही कम्युनिकेशन करना है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रिजिड रूल्स हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएं? हायरार्की भी फॉलो करनी है, ये रूल होना चाहिए, और टीम भी बनानी है, ये भी रूल होना चाहिए, और दोनों रूल आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। तो दोनों रूल्स को अगर रिजिडली फॉलो करा जाएगा तो क्या होगा? तो वो दोनों ही ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे। तो इसीलिए जब हम कॉन्सिक्वेंस से फोकस करेंगे तो हम फ्लेक्सिबल रहेंगे कि कब हायरार्की इंपोज करनी है और कब टीम भावना वाली चीज इन्फोर्स करनी है। तो दैट इज व्हाई इट गिव्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू अस कि वो रूल्स का कॉन्ट्रडिक्शंस को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जितना हम रिजिड होते चले जाते हैं उतना कॉन्ट्रडिक्शन के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हटाता हूं। ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव टू द वर्च्यू एथिक्स। तो वर्च्यू एथिक्स किस पे फोकस करता है? कैरेक्टर पर फोकस करता है, पर्सन पर, इंडिविजुअल्स पर। तो इसमें जो मेजर स्कूल ऑफ थॉट है वो ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट्स है ना। जो ग्रीक थिंकर्स थे उन्होंने काफी बातें इसमें बोली हैं, ठीक है। क्योंकि रैशनल ये है कि अगर कोई आदमी अच्छा है, वर्चुअस है, चरित्रवान है, तो राइट एक्शन विल फॉलो ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसलिए फोकस शुड बी ऑन बीइंग ए वर्चुअस पर्सन रादर देन एक्शन का कॉन्सिक्वेंस देखूं, उसके चक्कर में इससे अच्छा मैं अच्छा आदमी बनने फोकस करूं, मैं जनरली फिर अच्छा काम कर ही लूंगा। ये इसका
ये इसका वो है, स्कूल ऑफ थॉट है, मतलब मेजर पर्सपेक्टिव है। अब वो अच्छा आदमी कैसे बनना है, वो कौन से ट्रेट अपने अंदर लाने हैं, इस पे बात आती है। ठीक है, तो सोक्रेटिस जो है ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट ग्रीक थिंकर है, सोक्रेटिस, यस और नो। और इनका ये मानना था कि knowledge is the thing that is the only good. The only good is knowledge and the only evil is ignorance. उनका ये मानना था कि समाज में जो अज्ञानता है, जो इग्नोरेंस है, इसकी वजह से परेशानियां हैं, इविल हैं। अगर हम सबके पास नॉलेज आ जाए तो समाज में इविल होगा ही नहीं, ऐसा ये बोलते थे। So that is why के फेमस स्टेटमेंट आते हैं, ए नॉलेजेबल पर्सन कैन डू नथिंग रॉन्ग। क्योंकि इनके हिसाब से अगर आपके पास ट्रू नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है, तो आप गलत काम नहीं करेंगे। इग्नोरेंस पर्सन ही गलत काम करता है, एज पर सोक्रेटिस। बट हाउ डू वी अराइव एट द राइट नॉलेज? हम राइट नॉलेज तक पहुंचेंगे कैसे? फॉर दिस ही रिकमेंडेड सोक्रेटिक मेथड, जिसको बोलते हैं डायलेक्टिक मेथड। द डायलेक्टिक मेथड इज अबाउट क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल क्वेश्चनिंग। क्रिटिकल क्वेश्चनिंग के ऊपर बात करता है डायलेक्टिक मेथड, और ये बोलता है कि वॉट एवर अजम्पशंस दैट वी माइट मेक एन इनिशियल अजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल, अजम्पशन कुड बी कि हमको हाई ग्रोथ चाहिए, उसके बाद कुछ उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस इमर्ज होंगे कि यार हाई ग्रोथ फॉलो करेंगे तो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी उसके होंगे, यस और नो। इंडस्ट्री लगाएंगे, डैम्स लगाएंगे, माइंस लगाएंगे, फॉसिल फ्यूल से गाड़ियां चलाएंगे, तो क्या होगा? एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होगा, जो कॉन्ट्रडिक्टरी है क्या नहीं है? सो अब तीसरा स्टेप क्या है? हम अब इनिशियल आर्गुमेंट को मॉडिफाई करेंगे कि परहैप्स हमको हाई ग्रोथ नहीं चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए, और उसके लिए हमको EIA की जरूरत है। तो इस तरीके से बेसिकली ही इज आस्किंग अस टू क्वेश्चन आवर बिलीफ पैटर्न, कि वॉट एवर आवर थीसिस स्टेटमेंट इज, वी मस्ट आइडेंटिफाई द एंटीथीसिस टू दिस, एंड देन वी मस्ट अराइव एट द सिंथेसिस। व्हाई? बाय कमिंग अप विद द बेटर आर्ग्यूमेंट्स। Basically, he is asking us to introspect, he is asking us to question and critique our own belief pattern, our own belief system. आ रही बात समझ में आपको? And that is why आपके इस साल ऐसे में भी आया था, thinking is a game that does not begin until unless there is an opposition. That opposition is this only: to every thesis there has to be antithesis, so that you can question and check the validity of the statement. And that is why it is said, this school of thought says that an unexamined life is not worth living, because it asks us to examine our belief pattern, our thoughts, our attitudes and our behaviors. Because if we do not examine what will really happen, हम अपने थॉट्स में वो हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, हमारे थॉट्स इंप्रूव नहीं करेंगे। सती प्रथा को किसी ने क्वेश्चन किया, तभी तो वो पता चला कि गलत चीज है। कास्ट को क्वेश्चन किया, रेसिज्म को क्वेश्चन किया। So thinking is a game, it does not begin until there is an opposition. Basically, we must be mindful of the critical perspective that can be there towards to our own thoughts. So that is the method that he has suggested, that we must do this thesis, antithesis, synthesis wala thing. We must do this critical analysis of our own opinions and belief pattern, so that we can arrive at true knowledge. And that is what we believed, that अगर आप ये self introspection करेंगे, self improvement करेंगे, self reasoning करेंगे, तो you will become a better person. And that is why one of the most important virtue is knowledge. Knowledge is the most important virtue, and this virtue leads to happiness. If one knows what is good, one will do what is good. ये अपने आप में एक स्टेटमेंट आ सकता है कोटेशन में आपके. If one knows what is good, one will do what is good. So basically, this statement identifies the importance of knowledge and attitude. पढ़ लिया आपने, cognitions. Cognitions are functions of your knowledge only.
कॉग्निशंस आर फंक्शन ऑफ योर नॉलेज ओनली, कि नॉलेज जैसा आपका है वैसा आपका कॉग्निशंस होगा. यस और नो? सो अगर हमारे पास राइट सेट ऑफ नॉलेज है कि भैया वेदों में कोई सती प्रथा सैंक्शन नहीं हो रखी, कास्ट रेसिज्म जो है वो मिथ है, एंथ्रोपोलॉजी में आपने पढ़ा भी होगा कि 99.99% ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है जो बताता है कि मोस्टली जीन्स हम सब में सेम ही हैं. सो ये सुपीरियर रेस का जो आर्गुमेंट है ये बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली फ्लॉड है. तो द ओनली गुड इज नॉलेज, बिकॉज बाय ट्रू नॉलेज वी कैन क्वेश्चन अवर बिलीफ पैटर्न एंड वी कैन अराइव एट द न्यू लर्निंग्स ऑल्सो. आ रही है मेरी बात आपको समझ में? यस और नो? ठीक है. सो दैट इज समथिंग दैट वर्च्यू इज द नॉलेज. And ultimately, the true happiness flows from the life that is right for your soul, not necessarily seeking the bodily pleasures. और इट सोक्रेटिस का ये आर्गुमेंट था जो बोलते थे कि अगर एक वर्च्यू होगी तो बाकी वर्च्यू भी आई जाएंगी धीरे धीरे. इसका मैंने आपको एग्जांपल पहले समझाया था कि आपको पंक्चुअलिटी भी अगर सीखना है तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस भी आना चाहिए, आपको करेज भी आना चाहिए, आपको डिसिप्लिन भी आना चाहिए, अगर तभी आप पंक्चुअलिटी सीख पाएंगे. कोई भी वैल्यू को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसपास की वैल्यू की डिमांड बढ़ जाएगी. सो एज पर हिम इन एवरी इंडिविजुअल देयर आर 4 चीफ वर्च्यूज. इसको मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि आगे चल के रिपीट होंगी. करेज, मॉडरेशन, जस्टिस एंड विजडम. बेसिकली ये कहते हैं कि ये 4 जो वैल्यूज हैं, ये हम वर्च्यूज हैं, ये हम सब में होनी चाहिए. दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल वर्च्यूज. एक्सप्लेन करूंगा अगली स्लाइड्स में क्योंकि आगे के थिंकर्स भी सिमिलर वैल्यू बताते हैं, तब एक्सप्लेन करूंगा. डोंट वरी. वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोक्रेटिस इज कि सोक्रेटिस को सजा दी गई थी, जहर दिया गया था, क्योंकि इनको बोला गया था कि आप यूथ को बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि ही वॉज क्वेश्चनिंग द प्रिवेलिंग थॉट पैटर्न्स. सोक्रेटिस को जेल में जाके उनके अनुयायियों ने बोला कि फॉलोअर्स ने बोला कि हम भगा देते हैं आपको, भाग जाइए, एस्केप रूट इज देयर. ही डिनाइड द एस्केप रूट्स. और उन्होंने बोला, क्या बोला कि मैं अपने मॉरल प्रिंसिपल खड़ा रहूंगा, मैं क्वेश्चन करता रहूंगा, मैं भागना उचित नहीं समझूंगा. दैट इज ए वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ करेज ऑफ कन्विक्शन जो आप पेपर में यूज कर सकते हैं. एनेक्डोट्स में लिख सकते हैं, एस्से में, कि आदमी अपने बिलीफ पैटर्न पे, अपने कॉन्विक्शंस पे कितना करेजियस तरीके से खड़ा रहता है और डेथ भी प्रेफर होती है रादर देन एस्केप रूट. आ रही आपको बात समझ में? सिमिलरली इनके जो डिसाइपल थे प्लाटो, वो मानते थे कि ह्यूमन सोल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. बेसिकली इट इज नेवर अबाउट डिजायर्स ओनली. वो कहते थे ना सोल के लिए क्या अच्छा है, तो सोल के लिए केवल डिजायर अच्छी नहीं है, हमारा इमोशनल एबिलिटी भी होना चाहिए, एम्पैथी या इमोशन महसूस करने का, और रीजनिंग भी होनी चाहिए ताकि हम जजमेंट ले सकें. तो बेसिकली जो अल्टीमेट जजमेंट है, हमारा हैप्पीनेस जब होगा जब हम बैलेंस करेंगे हमारे डिजायर्स को, हमारे इमोशंस को और हमारे रीजनिंग को. ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल डिजायर्स ही हमारा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, इमोशंस ही हमारा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं. देयर शुड बी कंट्रोल ऑफ द रीजन एंड नॉलेज ओवर दीज डिजायर्स. वही वाली बात कि सर्टेन प्लेजर्स आर हायर, सर्टेन प्लेजर्स आर लोअर, समथिंग लाइक दैट. तो ऑल दी, ये बिल्कुल यूपीएससी पूछेगा नहीं, बट आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे इमोशंस, डिजायर्स, नॉलेज, ये डिफरेंट कंपोनेंट है जो ह्यूमन बिहेवियर गाइड करते हैं. इतना समझ यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा आपको. और इनके हिसाब से जो 4 कार्डिनल वर्च्यूज हैं, दे आर प्रूडेंस. प्रूडेंस का मतलब क्या है? रीजनिंग करना, रीजनिंग, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करना, दैट इज प्रूडेंस. बहुत सारे एग्जांपल मैं दे चुका हूं प्रूडेंस के आपको पहले ही. यस और नो? प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग, जो रीजनेबल डिसीजन मेकिंग होती है, जो प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग होती है, दैट इज ए प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग. एग्जाम्पल जो स्कीम वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि इट इज नॉट प्रूडेंट कि हम उस महिला को अपनी जेब से पैसे देके खाना खिला दें जिनके पास स्कीम के डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट इफेक्टिव, इट इज नॉट प्रूडेंट. अगर प्रूडेंट का एग्जाम्पल, जस्टिस का मतलब है फेयरनेस. जस्टिस का मतलब है कि कॉस्ट और बेनिफिट है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए. जस्टिस को जॉन रॉल्स में पढ़ाऊंगा इसलिए ओपन नहीं कर रहा हूं बहुत ज्यादा. देन फोर्टिट्यूड, ये अपने आप में यूपीएससी पूछा हुआ है. फोर्टिट्यूड का मतलब होता है करेज, शोइंग करेज इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस. पीछे खाली करेज था,
इसलिए मैंने आपको यहां बताया करेज। करेज इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस इज फोर्टिट्यूड। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? फायर फाइटर्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया, जो बिल्डिंग में तब घुसते हैं जब बाकी लोग बाहर निकल के आते हैं। सोल्जर्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया, जो एडवर्स नक्सल प्रभावित इलाकों में जो ड्यूटी करते हैं उनका मैंने एग्जांपल दिया। सो शोइंग करेज इन एडवर्सिटी इज फोर्टिट्यूड। टेम्परेंस का मतलब होता है संयम, मॉडरेशन। मॉडरेशन, संयम। टेम्परेंस का मतलब होता है संयम, अपनी इच्छाओं पे, अपनी भावनाओं पे, अपनी डिजायर्स पर काबू करना। वॉलंटरी सेल्फ रिस्ट्रेन को संयम बोला गया है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेटेड टू द इमोशनल इंटेलिजेंस? वो भी संयम है। आ रही बात समझ में? तो इंपॉर्टेंट बस इसमें यही आपको समझना कि वर्च्यू अप्रोच का फोकस किस पे रहता है, इन वैल्यूज के मीनिंग क्या है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा नहीं सोल वॉल में बहुत ज्यादा यूपीएससी, जो पूछेगा वो मैं आपको बता रहा हूं जो जो इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली फर्दर आगे चलते हैं ग्रीक थिंकर में, तो एरिस्टोटल अपनी कुछ बात करते हैं। एरिस्टोटल भी सेम चीज बोलते हैं कि हैप्पीनेस का जो प्री कंडीशन है वो वर्चुअस कैरेक्टर है, एक्सीलेंट कैरेक्टर है। सेम चीज, सब सेम स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, सेम चीज बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है बस। ठीक है, ये बोलते हैं कि है जो फ्रेंडशिप है, जो फ्रेंडशिप ऑफ तीन टाइप की फ्रेंडशिप बताई इन्होंने, यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, समझाने के लिए बस बता रहा हूं कि कुछ फ्रेंडशिप यूटिलिटी की होती है, कि आप इसलिए दोस्त बनते हैं कि सामने वाला आपके लिए कुछ, आप उनको नोट्स दे रहे हो, बात डेली बेसिस पे बात हो रही है उनसे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी मीन्स कि आप किसी से इसलिए दोस्त बन रहे हो क्योंकि आपका कुछ स्वार्थ है। सो ही सेज दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज नॉट वर्दी। फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर मीन्स कि कुछ आपको प्लेजर ड्राइव करना है अपने दोस्त के संग, संग में स्मोकिंग करनी है, संग में ड्रिंकिंग करनी है, वट एवर कुछ करना है, दैट इज फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर। एंड फ्रेंडशिप ऑफ गुडनेस इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, जो ये बोलते हैं कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप है वो यही होती है। एक्चुअल में कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी, एट यू मे यूज इट, अगर कोई क्वेश्चन फ्रेंडशिप पे आ जाता है, कि अल्टीमेटली एज एरिस्टोटल सेड दैट अ फ्रेंडशिप ऑफ गुडनेस इज समथिंग दैट इज लॉन्ग लास्टिंग एंड दैट इज व्हाट वी ऑल ऑफ अस शुड स्ट्राइव फॉर। ठीक है, ये काफी थ्योरेटिकल कंपोनेंट में पढ़ा रहा हूं आपको, कुछ अप्लाइड है, सीधा सीधा पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, तो समझने के लिए बस पढ़ा रहा हूं। ठीक है, देन अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ये जो बोलते हैं कि वी शुड लिव ए लाइफ ऑफ कंटेम्पलेशन, वही अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, एंड दैट इज वाई, क्यों, ऐसा क्यों है? ये इसलिए है बिकॉज अनलाइक एनिमल्स ह्यूमंस हैव रैशनल फैकल्टीज, ह्यूमन हैव द कॉग्निशंस एंड द एबिलिटी टू गवर्न द रीजनिंग और टू क्वेश्चन देमसेल्फ व्हिच एनिमल्स डोंट। एंड दैट इज वाई अगर आप एग्जामिन नहीं करते हो अपनी लाइफ को, सो इट विल बिकम एन एनिमलिस्टिक एग्जिस्टेंस फॉर यू, यू विल नेवर बी एबल टू लिव इन हायर पर्पज लाइफ। आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड में या लोअर लेवल ऑफ प्लेजर्स में इंडल्ज होते हुए रह जाएंगे। दैट इज व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो ऐसे में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। इसमें एग्जांपल दे सकते हो अशोका का, गौतम बुद्धा का, कि कैसे एक राजकुमार गौतम बुद्धा बन गया, कैसे गांधी जी ने एग्जामिन किया तो लड़ाई सत्य के लिए, जस्टिस के लिए लड़ाई कर ली, मदर टेरेसा सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लाइफ ऑफ कंटेम्पलेशन एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट एज पर एरिस्टोटल वाज कि ये प्रमोट गुड लाइफ एंड क्रिएट एसेंशियल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल एटसेट्रा। तो ये आप केस स्टडी में कोट कर सकते हैं कि दैट इज वन ऑफ द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द स्टेट दैट इज प्रोपाउंडेड बाय एरिस्टोटल, दैट वी प्रोवाइड opportunities for the citizens to develop spiritually, mentally and physically. आ रही आपको बात समझ में? And justice is another very important virtue for him, जैसे हम पहले भी पढ़ रहे थे। और इनके हिसाब से जस्टिस इज ऑफ टू टाइप, जनरल जस्टिस जो फेयरनेस है ना, और दूसरा है पर्टिकुलर जस्टिस, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो गया, पर्टिकुलर टाइप की चीज के लिए करा जाता है कि जो समाज में कॉस्ट एंड बेनिफिट का जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है उसको सही करना। जैसे मैंने ट्राइबल्स का आपको एग्जांपल लिया कि कॉस्ट में काफी ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, दे हैव टेकन सो मच ऑफ कॉस्ट
More than 60% of refugees are development refugees are tribals. तो बेसिकली सिग्निफिकेंट टोल जो है वो उन्होंने लिया है, कॉस्ट उन्होंने लिया है. तो दैट इज वाई डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस डिमांड्स कि वो जो लोग हैं उनको हम अलग से रिजर्वेशन दें या अलग से फायदा पहुंचाएं. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यू आर ट्राइंग टू करेक्ट द रीडिस्ट्रीब्यूशन एरर जो पहले हो चुकी है. आ रही आपको बात समझ में? बेनिफिट्स प्रोपोर्शनल टू मेरिट. जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के रिजर्वेशन है वो भी इसी का परिणाम है. दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. पर्टिकुलर जस्टिस है, किसी एक चीज के लिए है, इसलिए इसका नाम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये टर्म इंपॉर्टेंट है. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये अपने आप में आ सकती है. रेक्टिफिकेशन जस्टिस इज कुछ गलत हो चुका है, अब उसको सही कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एसिड अटैक हो गया किसी महिला के, तो अब उसके लिए कैसे उसको रिहेबिलिटेट कराया जाए, कैसे पनिशमेंट दिलवाई जाए, दैट इज रेक्टिफिकेशन जस्टिस. नॉट नेसेसरली इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज जो पहला वाला है. आइएगा समझ में? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एरिस्टोटल इज द प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन. एज पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक पेपर में आ सकता है एज इट इज. एज पर एरिस्टोटल द वर्च्यू इज नथिंग बट द मीन बिटवीन टू एक्सट्रीम. ही इज सेइंग कि करेज का मतलब क्या है? करेज का मतलब है कि आप एक्सेसिव करेज भी नहीं दिखा रहे हैं, दैट इज फुल हार्डीनेस, रेकलेसनेस, कि जाके सांप के आगे बीन बजा रहे हैं जबरदस्ती, है ना. वो कहे दारू पी के आपने देखा होगा ना, लोग उधम मचाते हैं, सांप को पकड़ के गले में डाल लेते हैं. यस और नो? या जबरदस्ती अतरंगी काम करते हैं, वो एडवेंचर जबरदस्ती करते हैं, बिना हेलमेट के तेज बाइक चलाएंगे, यूट्यूब के वीडियो बनाएंगे. सो दैट इज नॉट करेज, दैट इज फुल हार्डीनेस, दैट इज रेकलेसनेस. सिमिलरली लैक ऑफ करेज इज कवार्डिस, कायरता. So he is saying that any virtue is the golden mean between two excesses. One is of deficiency, another is of excesses. Two extremes, sorry. Middle path of two extreme. One is deficiency, another is excesses. So courage is an important virtue that highlights the golden mean between cowardice and recklessness. Similarly, respect is the golden virtue, golden mean between lack of respect is disregard, जो आप हमें करते हैं, and lots of respect is basically idolatry, जो हम किसी के भक्त हो जाते हैं, कि हमको क्वेश्चन ही नहीं करते. तो रिस्पेक्ट इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि भक्ति के लेवल पे चली जाए, कि आप उनको उनके ऐब नहीं दिख रहे हो, उनको आप एग्जामिन नहीं कर रहे हो, और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि हम उनको डिसरिगार्ड करें. गोल्डन मीन. लव इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप अंधे हो जाएं, प्यार में अंधे हो जाएं, जैसे कैकई हो गई थी अपने बेटे के प्यार में. और इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप सेल्फिश हो जाएं, कि आप बस खुद ही को समझते हैं, दूसरों के लिए कुछ परवाह नहीं है, कोई प्यार नहीं है आपके अंदर. सिमिलरली डिलीजेंस, इतना भी काम नहीं करें कि वर्कहोलिक हो जाएं, और इतना कम भी नहीं करें कि लेजीनेस हो जाएं. दिस इज एम्बिशन. इतना ज्यादा एम्बिशन नहीं हो कि लालच की रेंज में चला जाए, और ऐसा भी नहीं हो कि जीवन में कुछ चाहती नहीं बची है. तो बेसिकली ही हैज ट्राइड टू आइडेंटिफाई वर्च्यू एज द गोल्डन मीन बिटवीन डेफिशिएंसी एंड एक्सेस, बिटवीन टू वाइसेस. बोथ ऑफ देम आर वाइसेस ओनली. But the question in the examination will be first, it may come from this perspective कि what are the cardinal virtues that identify the Aristotle. गोल्डन मीन का प्रिंसिपल समझाओ, ये अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है थ्योरी के हिसाब से. इसलिए सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन कम इनटू द एग्जामिनेशन इज द रेलेवेंस ऑफ गोल्डन मीन इन प्रेजेंट टाइम्स. वेरी इंपॉर्टेंट थीम. रेलेवेंस, ये एग्जाम मैंने पिछला वाला को जल्दी पार करा दिया, एग्जाम से उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसको अच्छे से. गोल्डन मीन बिटवीन टू एक्सेसेस. तो मैं कह रहा हूं कि हाउ इट इज रेलेवेंट फॉर द प्रेजेंट डे सोसाइटी, दैट इज गोल्डन मीन. हैव यू हर्ड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म? सो अगर मैं डेफिशिएंसी की बात करूं तो जुडिशरी अगर इनएक्टिव हो जाए, आंखों पे पट्टी बांध ले, सुओ मोटो एक्शन नहीं ले, तो वो क्या हो जाएगा? वाइस.
डेफिशिएंसी वाला वॉइस। वहीं जुडिशरी ओवर एक्टिव होके लेजिस्लेचर और एक्टिव एग्जीक्यूटिव के काम में दखलंदाजी करे, वो क्या हो जाएगा? दूसरा वॉइस। सो दैट इज वाई व्हाट यू नीड इज जुडिशियल रिस्ट्रेन, एप्लीकेशन इन प्रेजेंट टाइम्स। सिमिलरली यू टॉक अबाउट द ब्यूरोक्रेसी, रूल्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? एनार्की, कोई रूल्स ही नहीं है। और रूल्स इतने ज्यादा फॉलो हुए कि दे बिकेम द एंड इन देमसेल्फ, तो क्या हो जाएगा? पर्पज ही पूरा नहीं होगा रूल्स का। एंड दैट इज वाई रूल्स को पर्सपेक्टिव में पढ़ना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म हो जाएगा, एक्सेस में चला गया तो रूल। इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं तो इतना ज्यादा भी काम में नहीं जाना चाहिए। वर्क, नो फैमिली टाइम, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ओनली फैमिली टाइम एंड दैट इज लीडिंग टू मोर फैमिली। देयर हैज टू बी बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। आ रही मेरी बात समझ में? अब थोड़ा सा इसको आइडियोलॉजिकल लेवल पे लेके चलते हैं। मैं अब आपको थोड़ा थोड़ा वहां लेके जा रहा हूं कि एक्चुअल में एग्जाम में कैसे सोचते हैं। अब गोल्डन मीन का रेलेवेंस मुझे प्रेजेंट टाइम में देखना है, तो मैंने जुडिशरी को देखा, मैंने ब्यूरोक्रेसी को देखा, मैंने फैमिली लेवल पे देखा। लेट अस टॉक अबाउट एट द सोसाइटल लेवल। शुड वी मूव टुवर्ड्स टू मच ऑफ कंज्यूमरिज्म और टू मच ऑफ स्पिरिचुअलिज्म? आ रही मेरी बात समझ में? या सुपरनेचुरलिज्म कर दो उसको। या तो हम बिल्कुल वही मानेंगे जो एग्जिस्टिंग है, दैट इज मेटेरियलिज्म, या हम बिल्कुल वही मानेंगे जो सुपरनेचुरल है। बीच का भी तो कुछ होगा। आ रही मेरी बात समझ में आपको? या तो हम ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, या हम एनवायरमेंट करेंगे। बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो होगा। आ रही मेरी बात समझ में? यस और नो? यस। सो दैट इज हाउ यू विल डेवलप द फ्रेमवर्क टू आंसर। कराऊंगा सेक्शन ए में, बस इंट्रोड्यूस कर दिया आपको कि डिफरेंट लेवल पे आपको सोचना चाहिए डिफरेंट एग्जामिनेशन में। ये टॉपिक मैं बिल्कुल थ्योरेटिकली भी आपको पढ़ा सकता था, बट उसका कोई मतलब नहीं है, किसी पूछता नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका। वही पढ़ा रहा हूं जो एक्चुअल एग्जाम में आएगा, और उसे ऐसे ही पढ़िए। इसको आपको फील आनी चाहिए कि इस स्कूल ऑफ थॉट का मीनिंग क्या था, आपको समझ में आना चाहिए, ताकि कोटेशन जब समझ में आए तो उसकी इंटरप्रिटेशन आप कर सकें और इसे अप्लाई कर सकें। और जहां जहां स्पेसिफिक चीजें वहां मैं बता रहा हूं। तो गोल्डन मीन समझ में आ गया आपको, वर्च्यू समझ में आ गए डिफरेंट, उनके एप्लीकेशन प्रेजेंट टाइम में समझ में आ गए। अच्छा, अगर मैं रिलीजन से इसको लिंक करूं तो कैन यू सी द मध्यम मार्ग हेयर? मध्यम मार्ग, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कैन टॉक अबाउट। सिमिलरली जस्टिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट। जस्टिस, ठीक है। सो देयर इज पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस। ये तीनों चीजें आप पढ़ चुके होंगे प्रीलिम्स में, उसमें पॉलिटी में। यस और नो? सेम ही चीज है। इकोनॉमिक बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट मत करिए, गरीबी अमीरी के बेसिस पे क्लास कंसिडरेशन मत लाइए। पॉलिटी के बात करेंगे तो पॉलिटिकल राइट्स की बात करिए, डेमोक्रेसी की बात करिए, वोटिंग राइट्स की बात करिए, ह्यूमन राइट्स की बात करिए। सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो सोशल एट्रीब्यूट्स के नाम पे डिस्क्रिमिनेट मत करिए, दैट इज रेस, कास्ट, सेक्स, सोसाइटी, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है जस्टिस। अब जस्टिस को वहां लेके चलते हैं जो एक्चुअल एग्जाम में आपको पूछ सकता है, ठीक है। दैट इज जॉन रॉल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जॉन रॉल्स। इसको पढ़ाऊंगा, फिर पूरा सा फोटो खींचना। सब बंद कर दो और इसे फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको। जॉन रॉल्स, जस्टिस को जॉन रॉल के टर्म्स में ही समझिए, बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। सो इमेजिन समाज में कोई नहीं है। इमेजिन समाज यही है जो हम क्लास में बैठे हुए हैं, बच्चे। हम ही लोग समाज हैं, दुनिया में कोई है ही नहीं कुछ। सपोज ऐसा है, ठीक है, यही दुनिया है आपकी और कुछ भी नहीं, और ऐसे ही हम एग्जिस्ट करते हैं एज ऑफ नाउ। जस्टिस का कंसेप्शन क्या है? जस्टिस का कंसेप्शन क्या है कि हमको हमारे एफर्ट के हिसाब से
हमको फेयर वैल्यू मिले, ये जस्टिस है? ये जस्टिस है क्या नहीं? ये जस्टिस है, यस और नो? लेकिन ये फेयर वैल्यू देगा कौन? क्या हम खुद दे लें खुद को? क्या मैं दे लूं खुद को? सपोज हम ही बस यही है और मुझे आपको कोई सर्विस देनी हो, पढ़ाना ही है, मैं बोलूं यार मैं ना आप सबको 10,000 रुपए क्लास के चार्ज करूंगा क्योंकि ये मुझे लगता है फेयर है। आप क्या बोलोगे? नहीं सर ये तो बहुत ज्यादा है, आप तो ग्रीडी हो रहे हो। यस और नो? तो डिसाइड कौन करेगा? फेयरनेस डिसाइड कौन करेगा? जॉन रॉल्स सेज दैट जस्टिस कैन बी इंश्योर्ड इफ वी क्रिएट जस्ट institutions in the society. It is those institutes, the institutes that will decide the fairness of the distribution, not the individuals, institutes. So John Rawls says in terms of creation of the institution, the just institutes in the society to distribute all these aspects. अब इंस्टीट्यूट कैसे बनाए? इंस्टीट्यूट कैसे बनाए? एक काम हम में से यह भी हो सकता है कि यार अब हमारा समाज है तो हमारे समाज में सफाई का काम भी किसी को करना पड़ेगा, है क्या नहीं? हम ही को करना है जो करना है, आपस में यही लोग हैं। कुछ को सिक्योरिटी का काम भी करना पड़ेगा, किसको पढ़ाने लिखाने का काम भी करना पड़ेगा। तो आप में से अगर मैं हाथ खड़ा करवाऊं कि पढ़ाने लिखाना कौन चाहेगा, आप हाथ खड़ा कर देंगे, काफी लोग हाथ खड़ा कर देंगे। और वही मैं हाथ खड़ा करवाऊं कि सफाई कौन करना चाहेगा, इंक्लूडिंग ऑफ द वॉशरूम्स, कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो क्या है, क्या करें? एक कास्ट का इंस्टीट्यूशन बना दें, एक कास्ट का इंस्टीट्यूशन बना दें कि जिसमें एक तरह की कास्ट हमेशा सफाई करेगी, एक तरह की कास्ट हमेशा पढ़ाई लिखाई का काम करेगी, एक तरह की कास्ट हमेशा लड़ाई दंगा करेगी, मतलब क्षत्रिय वाला काम करेगी, सिक्योरिटी करेगी। बना दूं इंस्टीट्यूशन? तो लेट अस से डिवीजन ऑफ लेबर के लिए मैंने इंस्टीट्यूशन बना दिया कि अब ये कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी इज एक्चुअली डिवाइडिंग द वर्क बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द कास्ट्स। आपको ये करना है, आपको ये करना है, नो कंफ्यूजन। लुक्स प्रॉमिसिंग, कंफ्यूजन नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। अब क्लीनलीनेस करनी तो किसी ने किसी को थी तो फिक्स कर दी, इनको कर दी, बट ये फिक्स कैसे होगी? ये फिक्स कैसे होगी? अगर मैं एज एन इंस्टीट्यूशन, लेट अस से आई कम फ्रॉम ए कास्ट एंड शी कम्स फ्रॉम द बी कास्ट, और मुझे ही बनाना है कि सफाई कौन करेगा, क्या मैं कभी बोलूंगा ए कास्ट सफाई करेगा? डू आई नॉट हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? आई डू हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. And that is why before I create that institution, I must have wheel of ignorance before me so that I do not know in which caste I am going to go. And since I do not know कि मैं कौन सी कास्ट में जाऊंगा, मैं कभी नहीं कहूंगा कि कास्ट बी को सफाई करनी चाहिए, क्योंकि कास्ट बी मैं भी हो सकता हूं. So that is why John Rawls says, before we create these institutions to distribute justice, it is very much important that we have this wheel of ignorance, because that will allow us a dispassionate view, or perhaps a more objective view of reality, that will avoid the conflict of interest, and that is how we shall be able to create just institutions. Because we will never get to know कि हमको क्या मिलने वाला है, एंड दैट इज वाई हम सब फिर फेयरली एक्ट करेंगे. सपोज अब हम सबको मिलकर एक कास्ट सिस्टम बनानी है, और हम सबके पास एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, हम नहीं देख पा रहे कि हमको कौन सी कास्ट में जाना है. क्या हम में से कोई भी अग्री करेगा कि एक ही कास्ट को हमें सफाई करनी चाहिए, और वो हमें सफाई ही करेगी, उसके बच्चे भी सफाई करेंगे? कोई अग्री करेगा क्या? That means what? That means this, कि the institution that I am going to create has to be rational, because all of us needs to agree to that part. The morality therefore is never about the morals and ethics alone. It is the product of reasoning. It is the product of rationality. That is another very important learning of John Rawls.
समझ में आ रहा है आपको? बिकॉज ऑल ऑफ अस आर एबल टू थिंक कि यार मैं भी बन सकती हूं आगे चल के वो वाली कास्ट में, तो मैं क्यों बोलूं अनटचेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, अब हम लॉजिकली सोचेंगे, तो भैया ऐसा कर लेते हैं कि इस काम को डिवाइड कर लेते हैं। तो कास्ट बेसिस पे डिवाइड नहीं करते हैं, किसी और बेसिस पे डिवाइड करते हैं। यही बोलोगे आप भी, क्योंकि आपको भी नहीं पता व्हील ऑफ इग्नोरेंस के बाद कौन सी कास्ट में जाने वाले हो। यू ऑल्सो डोंट नो। सो दैट इज व्हाट जॉन रॉल्स सेज कि हमको जस्ट इंस्टीट्यूशंस बनाने में फोकस करना चाहिए समाज में। इट इज दो जस्ट इंस्टीट्यूशंस दैट विल इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेयरनेस। और जस्ट इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए इट इज द प्रीरिक्विजिट कि आपको व्हील ऑफ इग्नोरेंस रखा जाए, ताकि आपको पता ही नहीं चले कि आपके लिए फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, सो दैट यू कैन अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। And while doing so, it is assumed that you are rational, because only a rational mind can only think ना कि भैया मेरा भी तो हो सकता है आगे चल के। ये इतना लॉजिक तो मुझ में है ना समझने के लिए कि मैं भी तो उस कास्ट में जा सकता हूं अगर मैं अनटचेबिलिटी को डाल देता हूं उस कास्ट में। तो since we are rational, so this morality that no one should actually suffer from untouchability, that is a moral lining ना। क्या मैं दोबारा से इंस्टीट्यूशन बना रहा हूं कास्ट का, हम सब मिलकर बना रहे हैं, क्या हम में से कोई चाहेगा कि इस कास्ट सिस्टम में अनटचेबिलिटी रहे? हम में से कोई चाहेगा? जब हमको पता ही नहीं कि हम कौन सी कास्ट में जाने वाले हैं, तो अब हम सब लॉजिकली सोच रहे हैं ना। लॉजिकली क्या सोच रहे हैं कि अनटचेबिलिटी इस कास्ट का पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो एसेंशियली इट इज ए मॉरल थिंग, बट दिस राइटियसनेस थिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द रीजनिंग। दिस इज व्हाट जॉन रॉल्स इज सेइंग। ये कोई डिवाइन वो नहीं आ रही है मेरे ऊपर कि मैं डिवाइन तरीके से सोच रहा हूं, भगवान का वरदान मुझे मिल रहा है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अनटचेबिलिटी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि भगवान कह रहा है, अनटचेबिलिटी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा कलेक्टिव रीजनिंग कह रहा है कि अनटचेबिलिटी का स्थान नहीं है समाज में। अच्छा, क्लीनिनेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सफाई करने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब सोच रहे हो ना, सफाई करने वाला तो होना चाहिए। तो क्या उसका मैकेनिज्म कास्ट बेसिस पे होगा? इस पे हम अग्री नहीं करते, लेकिन सफाई होना चाहिए। वी आर थिंकिंग रैशनली नाउ, वी आर थिंकिंग रैशनली बिकॉज वी आर नॉट श्योर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस कि हम कौन सी कास्ट में जाने वाले हैं। दैट इज व्हाट जॉन रॉल्स इज सेइंग। जस्टिस समझ में आया आपको? जॉन रॉल्स का मतलब क्या है? सो रॉल्स concept of justice is based on fairness and impartiality. And how do you create the society? By creating just political, economic and social institutions. They will distribute the rewards and punishment. मैंने आपको कास्ट का एग्जांपल लिया। इट कैन बी एनीथिंग, पुलिस, इट कैन बी पुलिस, इट कैन बी जुडिशरी। दीज आर इंस्टीट्यूशंस, समाज के इंस्टीट्यूशंस हैं ये। कास्ट इज एन सोशल इंस्टीट्यूशंस। एंड उसको करने के लिए वी नीड व्हील ऑफ इग्नोरेंस, जिसमें पीपुल आर अनअवेयर ऑफ देयर स्टेटस एंड पोजीशन सोसाइटी। बाय बीइंग इग्नोरेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस यू कैन बी मोर ऑब्जेक्टिव कि सोसाइटी को कैसे ऑपरेट करना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई रैशनल थिंकिंग एंड नॉट मोरालिटी विल डिसाइड। वेरी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट, ये अपने आप में आ सकता है स्टेटमेंट। मेरी बात समझ में आ गई आपको? समझ में आया आपको? The important another important thread of this John Rawls is the principle of greatest equal liberty. ये सिमिलर थिंग है जो हमने पहले भी पढ़ा है। ये लॉजिकल है काफी कि हर किसी को अपनी लिबर्टी को मैक्सिमाइज करने का राइट्स होना चाहिए, अपनी अपॉर्चुनिटी को इक्वल हम सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि दैट इज रैशनल ओनली। हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन टर्म्स टू ग्रो, इन टर्म्स ऑफ टू रीच देयर पोटेंशियल। ठीक है? If at all there has to be any difference, any discrimination, it should benefit the least fortunate. ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, because that is what it is logical. अगर हम परमानेंट इक्वलिटी नहीं रख सकते, अगर हम टोटल इक्वलिटी इंश्योर नहीं कर सकते, कुछ इनइक्वलिटी होगी भी तो वो इनइक्वलिटी लीस्ट फॉर्चुनेट के फेवर में होनी चाहिए। ये लॉजिकल है, क्योंकि वो लीस्ट फॉर्चुनेट हम भी हो सकते हैं। यही बोलोगे ना? ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट इज इसका क्रिटिसिज्म है कि वी आर नॉट ऑलवेज रैशनल। We might not always be, it might not be possible to completely ignorant of your own status and interest in real life. In real life, you will always know your status, you will always know your interest. कि मेरा क्या interest है. Then, evaluation of fairness might not always be possible.
अमर्त्य सेन एक एग्जांपल देते हैं, अमर्त्य सेन क्रिटिक किए कंसेप्ट का। अमर्त्य सेन बोलते हैं कि सपोज 3 फ्लूट हैं, 3 बांसुरी हैं, एक बच्चे ने उस बांसुरी को बनाया है, दूसरा बच्चा है जिसपे कोई और खिलौना नहीं है, उसमें कोई खिलौना ही नहीं है, तीसरा बच्चा है जिसको बांसुरी बजानी आती है। पहले 2 को बजानी नहीं आती, ए और बी को बजानी नहीं आती, केवल सी को बजानी आती है। ए और सी पे और भी खिलौने हैं, बी पे कोई भी खिलौना नहीं है, पर ए ने वो बांसुरी बनाई है। किसको दोगे बांसुरी? ए की फ्लूट है। सो इवेल्युएशन ऑफ फेयरनेस is not at times it is difficult, it is not that simple also. So that is another important criticism of John Rawls concept. And it is not just about creating the institutions, because institution create करने से outcome नहीं आता, it is about the न्याय also. पुलिस बना दिया, जुडिशरी बना दी, but न्याय मिल रहा है क्या? Important is the outcome. क्योंकि इनका फोकस था इंस्टीट्यूशंस बनाने पे, और केवल डिस्ट्रीब्यूशन एनफ नहीं है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट हाउ पीपल यूटिलाइज दीज रिसोर्सेस. कैपेबिलिटी अप्रोच जो अमर्त्य सेन बोलते हैं कि इन रिसोर्स को यूटिलाइज हम कैसे करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. केवल इंस्टीट्यूशन बनाने से बात नहीं बनेगी, जस्टिस नहीं आ जाएगा. इवन दो इंस्टीट्यूशन तो बनाए गए ना, अपने आप में जो लॉ बना, जो जज जुडिशरी बनी, वो तो अपने आप में कानून अंधा है, क्या क्या बनी है, ऐसी तो बनी है वो भी. भाई कानून अपने आप में गलत थोड़े ना है, बट द पॉइंट इसका एप्लीकेशन नहीं हो रहा है सही से. वही कह रहा है वो कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट द क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस बट ऑल्सो द एप्लीकेशन, न्याय, आउटकम. केवल डिस्ट्रीब्यूशन से बात नहीं बनेगी कि आपने स्कूल खोल दिए सब जगहों पे, बट वो रिसोर्स यूटिलाइज कैसे वो कर रहे हैं ताकि अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं. लर्निंग अप्रोच बेसिकली, लर्निंग आउटकम है कि नहीं, ये भी इंश्योर करना जरूरी है. क्रिटिक है 99.99% क्रिटिक पिक्चर में नहीं आएगी, यूपीएससी यहां पे नहीं जाएगा. थ्योरेटिकल क्रिटिक ज्यादा है, इसीलिए क्वेश्चन यहां पे आएगा. ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में स्टेटमेंट हो सकता है, ये पूछ चुका है यूपीएससी, दोबारा ही पूछ सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आ रही मेरी बात समझ में? यस. जनरल समझ में आ गया आपको, जस्टिस समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है. क्यों इंपॉर्टेंट है व्हील ऑफ इग्नोरेंस समझ में आ गया आपको? यस. चलो अच्छी बात है, तो नोट डाउन कर लो. और थोड़ा सा ही बचा हुआ है, अब उसको कल पढ़ाएंगे. अभी एनर्जी आज थोड़ी कम है, ठीक है. ब्यूरोक्रेसी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, राइट्स अप्रोच, जो और थोड़ा सा ही बचा हुआ, ज्यादा नहीं है, 1 घंटे का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है. आप कहां से कराना है आपको नोट? यहां से करिए. हट जाऊं मैं, मर जाऊं? मेरी बीवी ने करवा चौथ रखा है मेरे लिए, हैं? हो गया? ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में. कल ऐसे भी है आपका थर्सडे फ्राइडे, है ना, तो 11 बजे ऐसे की क्लास है और 2:30 बजे एथिक्स है अपना, ठीक है. 11 बजे मिलते हैं. रैशनल थिंकिंग लाइन ये है कि जो मोरालिटी है, जो अच्छे रूल्स हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ लॉजिक.
लॉजिक का रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि रामायण में बात लिख दी इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं, बट वो लॉजिकल भी है, ये मतलब है। जो कांत बोलते थे, कांत जी तो ये बोलते थे कि जो आप प्रिंसिपल बना रहे हो वो रैशनैलिटी से बन रहा है। सेम आर्ग्यूमेंट है। बाकी अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं कल समझाऊंगा, मेरी एनर्जी थोड़ी खत्म हो गई है, कल समझा दूंगा फिर से।